Hello, everyone. Good evening. I am Dr. Richa Sugan from Bladder Wellness Team. We call him the hero of urology, Dr. Sanjay Pandey, who is the head of the Department of Urology, Andrology, Consultant Robotic Surgeon, and Gender Reaffirmation Surgery at Kokilaben Dhirubhai Ambani Hospital, Mumbai. Dr. Sanjay Pandey is dedicated towards treatment, cure of difficult urology diseases since last 2 decades and has a rich experience in the field of urology and carries out the treatments with utmost precision and efficiency, ensuring that the patient's health is in safe hands. Prostate issues being progressive and silent changes between the 40s and 80s in men that lead to obstructive urinary complaints and host of urinary issues. Today, Dr. Pandey sir will be taking us through the topic of safeguarding prostate health for all men in the year 2024. So, viewers, without wasting much of your time, let us start the session. Over to you, sir, Dr. Sanjay Pandey. Dr. Richa, good evening. Good evening, sir. It's a great honor to be here and to be able to get back to the society on issues and requirements which we need to look forward to again and again. So when I look into this important aspect, my salute and respect to everybody in the audience who may have joined before I joined. My apologies on a usual delays that sometimes get going, partly because of issues that come up on the internet and the delays that we do in a working hour. So we just finished 11 hours, 45 minutes of work, and we got back into office after the surgeries. And good evening, everybody, right now from two different platforms. One is the Kokilaben Dhirubhai Ambani Hospital, where we follow a motto, every life matters. And from this important team, the Bladder Wellness team at the IPCA, thank you so much, IPCA, for having brought about this important platform, which is called as Bladder Wellness. When you look at this, issues of health, to bring about wellness is a very important aspect. So आज की ये पूरी कोशिश थोड़ी इंग्लिश और थोड़ी हिंदी में, थोड़ी इंग्लिश में होगी, इसी आशा में कि हमारे मित्र, हमारे बंधु जो कहीं कहीं से ज्वाइन कर रहे होंगे, इसी आशा में कि कुछ और पता चले प्रोस्टेट के बारे में, उसके बारे में जरा गौर करते हैं. फ्रेंड्स, 2024 वो ईयर है जहां हम पॉजिटिव हेल्थ को बहुत ऊंचे लेवल तक प्रमोट करना चाहते हैं. मैं और आप नहीं, पूरी दुनिया. बिकॉज अब हेल्थ शुड बी ब्रॉट टू द फ्रंट रो सीट, और आज हम पुरुषों के बारे में बात कर रहे हैं. एंड देयरफॉर व्हेन वी लुक एट दैट, वी आर लुकिंग एट इंप्रूविंग द प्रोस्टेट हेल्थ ऑफ ऑल मेन इन दैट ब्रॉड प्राइम ऑफ लाइफ फ्रॉम 40s to 80s. 40 के दशक से लेकर के जो 80 का दशक है, इसमें बड़ी प्रोग्रेसिव और बहुत स्लो चेंजेस होती है पुरुषों में. आज उसके बारे में कुछ टच करते हैं और आशा करेंगे कि आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चंस को आंसर करना चाहते हैं. मेरी पूरी प्रेजेंटेशन कुछ मिनटों में इसलिए है कि हम लोगों को जागरूक करें, ये प्रोस्टेट होता क्या है, प्रोस्टेट है क्या, और हम यूरोलॉजिस्ट इस देश में, इस शहर में और कोकिलाबेन हॉस्पिटल में मरीजों के साथ क्या बात करते हैं. तो इनमें से कोई मरीज नहीं है, हर कोई नॉर्मल इंसान है, हर किसी की प्रोस्टेट में कुछ चेंज हो रही है. उस चीज को आगे बढ़ाने के लिए और इससे प्रॉब्लम ना होने देने के लिए आगे बढ़ने की जरूरत है. तो इस पे काफी डिस्कशन है, इस पे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं. मैं आशा करता हूं कि हमें कहीं कुछ ना कुछ क्वेश्चंस मिले जो हमारे लिए बहुत फायदेमंद रहेगा. सो टाइम टू ब्रिंग हेल्थ टू द फ्रंट रो सीट एंड फॉर ऑल मेन. आज प्रोस्टेट हेल्थ को फ्रंट रो सीट पे लाने की जरूरत है. तो इस प्रोस्टेट हेल्थ में प्रोस्टेट है क्या, प्रोस्टेट की चेंजेस क्या हैं, और उसकी ट्रीटमेंट के लिए हम डॉक्टरों के पास क्यों जाते हैं, ये यूरोलॉजिस्ट के द्वारा सुनिए और फिर उसके बाद इसे इंप्लीमेंट करते हैं. तो फ्रेंड्स, ग्रीटिंग्स फ्रॉम कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल, जहां अपने ऑफिस में आज रात को 8 बजे, आज की सोमवार की ड्यूटी खत्म होने के बाद हम आपके साथ बैठ करके ये वार्तालाप कर रहे हैं, यह चर्चा कर रहे हैं कि प्रोस्टेट होता क्या है और पुरुषों को किस तरह से ये तंग करता है. फ्रेंड्स, एवरी लाइफ मैटर्स इज द मोटो हम अपने हॉस्पिटल में फॉलो करते हैं, कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल, अंधेरी वेस्ट, मुंबई में. पर हम आज 40s to 80s में जो पुरुष हैं, जो हमें देख रहे हैं, और जो पुरुष यूरिनरी प्रॉब्लम के थ्रू गुजरते हैं, उनको संभालने के लिए, उनकी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए, आज हम उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करने के लिए इस मंच पे आए हैं, जहां इट इज इंपॉर्टेंट वी टेक इट फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट लेवल. सो पूरा पर्पस क्या है इस बातचीत का, इस वार्तालाप का, उसके बारे में गौर करते हुए इट इज इंपॉर्टेंट टू ब्रिंग अबाउट इंप्रूवमेंट इन द प्रोस्टेट यूरिनरी हेल्थ, जो बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है, जिसपे हम गौर करने वाले हैं. एंड एज पीपल कंटिन्यू टू एडजस्ट इन वेरी बिजी लाइफस्टाइल, वो दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, या वो 2 tier cities हो, वो सबर्बन या विलेजेस हो,
ये प्रोग्रेसिव चेंज एक बार एज तक आ जाती है और उस एज को ना आने देने की कोशिश है, और तभी इस तरह के पॉजिटिव प्लेटफॉर्म ब्लैडर वेलनेस से हम आज आपके साथ बात कर रहे हैं। तो अपने डॉक्टर के साथ मिलने की जरूरत है, बिकॉज यूरिनरी हेल्थ कौन सेफगार्ड करता है? वो आपके यूरोलॉजिस्ट सेफगार्ड करते हैं। इस देश में और इस शहर में यूरोलॉजिस्ट अपने अपने क्लिनिक्स में, अपने हॉस्पिटल में आपसे वो क्वेश्चंस पूछते हैं जिससे पता चल जाता है कि आपने इस चीज को कैसे एडजस्ट किया हुआ है। तो आज उस पर गौर कर रहे हैं। तो हमारा ये सोचना है कि हैव वी कम अ लॉन्ग वे येट? हम अपनी जनरल हेल्थ को लेके, अपनी लाइफस्टाइल डिजीजेस को लेकर के, और फिर अपनी यूरोलॉजी हेल्थ को लेकर के हम जागरूक हैं क्या? जागरूकता में है और कंट्रोल में है, या भी ग्रेजुअली लूजिंग कंट्रोल और डॉक्टर को बताते हैं कि प्रॉब्लम 6 महीने से है, 6 साल से है, वगैरह वगैरह। तो कुछ एग्जांपल्स के द्वारा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे ऑन अ वेरी फोकस टॉपिक टुडे, प्रोस्टेट, जो पुरुषों की बातचीत है। तो आज जितनी भी लेडीज देख रही हैं वो अपने पार्टनर्स, अपने हस्बैंड्स के लिए ये दुआ करती हैं कि उनकी यूरिनरी प्रॉब्लम ना हो। जितने भी लोग 40s में हैं वो अपने फादर्स और ग्रैंडफादर्स को देखते हैं तो पता चलता है कि यूरिनरी हेल्थ धीरे धीरे डिटेरिएट हो रही है। या तो बार बार जाना पड़ रहा है, या यूरिन खाली नहीं होता है, ये रात भर जगे रहते हैं, या फिर यूरिन की ऐसी समस्या जिसमें आप यूरिन में खून जा रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है। इन सब चीजों को नहीं होने देने की चेंजेस है, और ये सब कुछ एज के साथ चेंज होता है। सो एज एज चेंजेस ग्रेसफुली, एज आवर ब्लैक हेयर्स ग्रेजुअली टर्न ग्रे, एज वी कीप कटिंग आवर बर्थडे केक्स एवरी ईयर एंड सेलिब्रेट इट, forgetting that we are getting less younger by one more year or getting older by one more year, changes do happen. And यूरोलॉजी में तो इसका कुछ कहना ही नहीं है, बिकॉज यूरोलॉजी में ऐसी बहुत सी चेंजेस हैं जो बहुत स्लो हो रही हैं। तो आज जागरूकता का दिन है, आज वो दिन है इस प्लेटफॉर्म से जब हम आपको जागरूक करें। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि ये बीमारी किसी और को होती है, ये हमें भी हो सकती है। और विद चेंज हम यूं बिल्कुल इंप्रूव कर रहे थे, हम प्लेटू करते हैं, फिर उम्र के साथ साथ ये चेंज होती है। तो इसे क्यों ना संभाल के रखें, वो हमारे लिए जरूरी है। तो फ्रेंड्स, मैं कहता हूं कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती हैं जो जन्म के साथ होती है, जैसे कंजेनिटल प्रॉब्लम कहते हैं। छोटे बच्चे जन्म लेते हैं तो बहुत सी यूरिनरी प्रॉब्लम हो सकती है, यूरिन टिप से नहीं आ रहा है, ब्लैडर खुला पड़ा हुआ है। भगवान ने कुछ ऐसा बॉडी बनाया जिसमें कुछ कुछ अंग की कुछ कमी रहती है। जैसे जैसे ग्रोथ होती है, हॉर्मोन्स आते हैं, और लड़कियों में पीरियड शुरू होता है, पुरुषों में जब प्यूबर्टी होती है तो अलग अलग चेंजेस होते हैं। उस समय जब ग्रोथ हो रहा है, ऑर्गन्स का जागरूकता हो रही है, हार्मोन चेंज हो रहा है, तो कुछ एडोलेसेंट यूरोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। और फिर एडल्ट, जब वो मैच्योर एडल्ट बॉडी हो जाता है, तो यूरिनरी ऑर्गन्स, सेक्सुअल ऑर्गन्स, जितने भी अंग होते हैं वो सब बहुत सेटल हो जाते हैं। उसके बाद उनकी बीमारियां हो सकती हैं, जो बीमारी इन्फेक्शन हो, ट्रॉमा हो, इंजरी हो, कैंसरस चेंज हो, या एज रिलेटेड चेंज हो। मैं कुछ एपिडेमियोलॉजिकल डिजीज की बात कर रहा हूं, जिसमें एक डिजीज आज है प्रोस्टेट। प्रोस्टेट उम्र के साथ बदलता है। तो एपिडेमियोलॉजिकली जैसे जैसे हमारी संख्या बढ़ रही है इस देश में, हम 140 पॉपुलेशन होते जा रहे हैं। प्रॉब्लम है कि ये पुरुषों की जैसे उम्र बढ़ती है प्रोस्टेट की चेंजेस होती हैं। तो उस चेंजेस पे आज बात करेंगे। और फिर औरतों की प्रॉब्लम होती है, जो हम पिछले बार बात कर रहे थे इसी प्लेटफॉर्म से, जो आपने सुना होगा। और फिर हम मार्च के महीने में विमेंस डे के दिन इनकॉन्टिनेंस वीक सेलिब्रेट करते हुए विमेंस की यूरिनरी इशू पे फिर बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम आज बात कर रहे हैं प्रोस्टेट हेल्थ के बारे में, और बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या डिस्क्राइब करते हैं हम क्वालिटी ऑफ हेल्थ के बारे में जब हम पुरुषों की प्रोस्टेट की चेंजेस के बारे में बात कर रहे हैं। सो what best describes the quality of life issues in India on prostate issues, where men gradually go through it, but many men deny, many men don't know, and many men actually come in emergency. तो या तो आपको मालूम ही नहीं है, या आपको मालूम है पर वो काम तो चल रहा है, या बिल्कुल इमरजेंसी बनती है। और इन तीनों में से कोई भी चीज ऐसा ना हो आज की इस वार्तालाप के बाद, जिसमें आपके क्वेश्चंस का इंतजार रहेगा, उसके साथ साथ कुछ छोटी सी क्वेश्चंस के साथ से आपको जागरूक करते हैं। तो याद रखिएगा, प्रोस्टेट हेल्थ की बात, प्रोस्टेट डिजीजेस की बात, प्रेवलेंस रेट्स बहुत हाई है। मैंने कहा जो भी पुरुष आज इसे देख रहे हैं और उनकी उम्र 40-50 की उम्र है, उस समय से यूरिनरी हेल्थ में चेंजेस होते हैं। और ये 60-70-80 के दशक में, 90-100 के दशक में प्रोग्रेसिव होते होते एक लेवल पहुंचते हैं जहां प्रॉब्लम बहुत बढ़ती है और जागरूकता रहती नहीं है। तो आज हम किसी भी उम्र के हों और हम पुरुष हैं, तो इस शहर में, इस देश में इस चीज को आगे ले जाना चाहते हैं, बिकॉज इसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे बहुत इंपैक्ट पड़ती है। उस पर गौर करेंगे। एंड सैडली इट इज अंडर रिपोर्टेड, इसकी रिपोर्टिंग कम है, लोग स्वेच्छा से आके बताते नहीं है। या तो बहुत प्रॉब्लम हुई तब आते हैं, या दवाइयां खा रहे हैं और दवाइयों से आराम नहीं मिल रहा तो आके बताते हैं, या बिल्कुल डायग्नोज नहीं हो पाते बिकॉज शायद किसी और को दिखा रहे थे। बहुत बार फैमिली फिजिशियंस और जनरल प्रैक्टिशनर्स को भी हम शुरू में दिखाते हैं, पर अंत में यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए आपको इस देश में, शहर में यूरोलॉजिस्ट के पास ही जाना पड़ता है। बॉम्बे में 200-250 यूरोलॉजिस्ट अपने काम में लगे रहते हैं सुबह से रात तक, रूटीन कंडीशंस में, और वो इमरजेंसीज में जो बहुत बार इमरजेंसी बनती है। हमारे हॉस्पिटल में भी, कोकलाबेन हॉस्पिटल में, हम 3 यूरोलॉजिस्ट सुबह से शाम लगे रहते हैं, और बहुत बार
कुछ इमरजेंसीज आती हैं और रूटीन प्रॉब्लम आती हैं जो बहुत दूर तक जा चुका है. सो अंडर रिपोर्टेड, अंडर डायग्नोज, अंडर स्टडीड, सैडली अंडर ट्रीटेड एंड देयरफॉर नॉट नोटिस्ड. ये पूरी प्रॉब्लम चल रही है, हमें पता ही नहीं था. कल रात सडनली यूरिन बंद हो गया. उससे पहले से क्या चल रहा था? तो उससे पहले से अवश्य हम कुछ चल रहे थे, और जब बिल्कुल एज पे आए तो यूरिन बंद हो गया. तो किस तरह के लोग आते हैं और क्या क्या कंप्लेन करते हैं, जरा उस पर एक बार गौर करते हैं, ये पूरी प्रोस्टेट की इश्यूज को लेकर के. तो गौर के लिए पहला, मैं पूरी रात जगा रहता हूं. मेरी उम्र 40 से 80 साल की उम्र में है. मेरे को रात को 2 3 बार 4 बार जाना पड़ता है. मेरी नींद पूरी हो नहीं पाती है. सुबह उठता हूं तो टायर्ड लगता है, और फिर जब मैं काम करने जाता हूं बैंक में, हॉस्पिटल में, या ड्राइव करता हूं, ड्राइवर हूं, तो नींद आती रहती है. मेरे को वो कंसंट्रेशन नहीं हो पाता डॉक्टर पांडे. तो आई एम पासिंग यूरिन होल नाइट, जिसे हम कहते हैं नॉक्ट्यूरिया. रात को बार बार यूरिन जाना. 40 50 साल के बाद पुरुष में जो चेंजेस होती है हार्मोन की, पुरुषों में मेंस्ट्रुअल पीरियड तो होता नहीं है, तो ये पता नहीं चलता कि कब उनकी हार्मोन्स धीरे धीरे चेंज हो रही होती है. औरतों में 40 50 साल के बाद पीरियड्स बंद हो जाते हैं. पता चलता है कि हार्मोन्स की बहुत सिग्निफिकेंट और सडन चेंज हो गई है. लेकिन पुरुषों में भी यही चेंज हो रहा होता है, और ये सिग्निफिकेंट कोई डेट नहीं होता, इसकी कोई तारीख नहीं होती है. तो आज आप सबको, जब हम लोग 12 फरवरी को इस इंपॉर्टेंट अभियान में लगे हुए हैं कि प्रोस्टेट हेल्थ को आगे ले जाएं, पहला और सबसे इंपॉर्टेंट था नॉक्ट्यूरिया, या गेटिंग अप मल्टीपल टाइम्स एट नाइट. और ये 40 साल में भी होता है, 70 80 साल में भी होता है. इसमें मैं जरा एक बार गौर करना चाहता हूं. नॉक्ट्यूरिया और गेटिंग अप मल्टीपल टाइम्स एट नाइट होता ज्यादा उस उम्र में है जो व्यवस्था हमारी उम्र में 60 70 80 90 में देखी जाती है. उस उम्र में होता क्या है, एक तो रातों में हमारे बुजुर्गों में नींद थोड़ी कम रहती है, और दूसरी तरफ रात को पेशाब ज्यादा बन रही होती है. तो हमारी नींद थोड़ी शिथिल है, हम सोने भी गए तो करवट बदल रहे हैं, उतनी डीप नींद नहीं है. और दूसरी तरफ ब्लैडर भरता जा रहा है, बिकॉज किडनी पेशाब बनाती है और वो ब्लैडर में आता है, और ब्लैडर हमें बार बार जगा रही है, क्योंकि हम ऐसे ही जगे हुए हैं. हमारी नींद उतनी उतनी स्ट्रांग नहीं है जितना बगल में रूम में सब कोई 20 30 40 साल में सो रहे हैं और स्नोर कर रहे हैं, उनकी नींद बहुत डीप होती है. तो नॉक्ट्यूरिया और गेटिंग अप एट नाइट एक बहुत ही कॉमन कंप्लेंट है पुरुषों में और स्त्रियों में, बुजुर्गों में उस उम्र में. दूसरा कहते हैं, आई हैव टू सर्च टॉयलेट्स और अदरवाइज आई विल लीक यूरिन. मतलब पुरुष अगर बताता है कि मेरे को भागना पड़ रहा है, मेरी ब्लैडर ओवर एक्टिव है, दौड़ना पड़ रहा है, मतलब देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट ही इज नॉट एबल टू कंट्रोल. ये औरतों में ज्यादा देखा जाता है, बुजुर्गों में देखा जाता है, बट इट कैन हैपन टू एनीबडी. मैं देखता हूं आज सुबह, सोमवार के सुबह 8:30 बजे कोई आया जिनकी उम्र 34 35 है. वो बोले आज मैंने छुट्टी ले ली हाफ डे, ये बताने के लिए कि मैं यूरिन कंट्रोल नहीं कर पाता. यहाँ अंधेरी से मेरे को बैंड्रा तक जाना पड़ता है कार चला के, और लगता है कि मेरे को 2 3 बार कार रोकना पड़ेगा. इसका मतलब है अब ब्लैडर वेलनेस उतनी अच्छी नहीं है. जैसे ब्लैडर वेलनेस की प्लेटफॉर्म पे हम बात कर रहे हैं, ये ब्लैडर बार बार कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और भगा रहा है. अदरवाइज हैव टू सर्च टॉयलेट्स, या मैं लीक हो जाऊंगा. तो 35 40 साल से लेकर के 80 साल की उम्र में प्रोग्रेसिवली जैसे प्रोस्टेट की चेंज होती है, वैसी ब्लैडर की भी हेल्थ में चेंज होती है. और कभी कभी ब्लैडर अपने में ओवर एक्टिव हो सकता है, जो किसी उम्र में किसी भी जेंडर में हो सकता है. प्रोस्टेट की इशू में ये याद रखें, जब प्रोस्टेट की चेंज होती है, जिसके बारे में गौर करेंगे, और प्रोस्टेट यूरिनरी पैसेज को धीरे धीरे ब्लॉक करता जाता है और फ्लो खुल के नहीं आ रही है, और ना हमें उसकी जागरूकता है, ना ही उसे भाप पाते हैं, तो बहुत बार ब्लैडर बार बार कॉन्ट्रैक्ट करता है और आपको भगाता है, विच इज अ सेकेंडरी ओवर एक्टिव ब्लैडर, सेकेंडरी टू एन ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ यूरिन. ऑब्स्ट्रक्शन तो है, हम उसे अनदेखा कर रहे हैं, दवाइयां खा रहे हैं, कुछ काम चल रहा है, हम कुछ टाले जा रहे हैं, लेकिन अब ब्लैडर क्या करे बेचारा, ब्लैडर कैसे कॉन्ट्रैक्शन करके पुश करे. तो ब्लैडर लर्न्स अ बिहेवियर, जैसे दरवाजा बंद है तो मैं बार बार नॉक कर रहा हूं, खोलो खोलो खोलो. सो दिस इज अ प्रोग्रेसिव बिहेवियर. आई कांट कंट्रोल यूरिन बिफोर आई रीच द टॉयलेट, मतलब लीक ही हो जाता है. आई पास ब्लड इन यूरिन. पासिंग ब्लड इन यूरिन इज नेवर नॉर्मल. पिछले 40 50 60 साल तक कभी यूरिन में ब्लीडिंग नहीं हुई थी, तो आज ब्लीडिंग क्यों हो रही है? ऐसा कुछ है जो ब्लीडिंग हो रही है? पहली पॉसिबिलिटी है, कहीं यूरिनरी पैसेज में, जो किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, कहीं भी ऐसा हो सकता है जहां पे कोई बीमारी है, कोई लीजन है, कोई इंफेक्शन है, कोई गांठ है, कोई पत्थर है, कोई कैंसर है, जिससे ब्लीडिंग हो सकती है. अगर ऐसी कोई कंप्लेन पुरुषों में हो रही है और वो जोर लगा रहे हैं, यूरिन पास कर रहे हैं, तो ये प्रोस्टेट जो है अपने में एक ग्लैंड है, उसकी ब्लड सप्लाई उम्र के साथ साथ साइज के साथ बढ़ती है, और कभी स्ट्रेन करें तो ब्लीडिंग हो सकती है. बहुत बार लोग हल्का सा ब्लीडिंग देखते हैं, शुरू में देखते हैं, अंत में देखते हैं. बहुत बार ब्लीडिंग बहुत जोर से हो रही होती है, पूरी यूरिन ही पूरी कंप्लीट हेमाचूरिया के नाम पे मानी जाती है, पूरा यूरिन ही ब्लड में है, और ऐसा कंडीशन है तो हमें जानने की जरूरत है. अनदेखा ना करें कि बहुत बार डॉक्टर पूछते हैं कि आप कोई ब्लड थिनर तो नहीं खा रहे. इस देश में 40 50 60 साल के बाद कार्डियक इश्यूज, न्यूरोलॉजिकल इश्यूज के कारण बहुत से पेशेंट इकोस्प्रिन, एस्प्रिन, क्लोपिडोग्रेल और अलग अलग ब्लड थिनर्स खा रहे होते हैं. तो हमारे बहुत जरूरी है कि हम जागरूक रहें कि हम ऐसी कोई ब्लड थिनर तो नहीं खा रहे जैसे खाने के बाद हमारी यूरिन में ब्लीडिंग हो रहा है. हमने एंजियोप्लास्टी कराई और 2 हफ्ते बाद ब्लीडिंग शुरू हो गई. पता चला यूरिन में हर दिन थोड़ा बहुत ब्लीडिंग होता है, कभी क्लॉट्स भी आ रहे हैं. तो ये जानना जरूरी है कि पुरुष में अगर यूरिन में ब्लीडिंग हो रही है तो कुछ ना कुछ कारण है, जिसमें हम प्रोस्टेट, ब्लैडर, किडनी की हेल्थ के बारे में बात करते हैं.
अब हम आ रहे हैं, आई एम टेकिंग अ लॉन्ग टाइम टू एम्प्टी माई ब्लैडर। मेरे को यूरिन खाली करने में बहुत समय लगता है डॉक्टर साहब। मैं गया, खड़ा हुआ, कुछ लोग यूरिन पास करके चले गए, मैं अभी तक कर ही रहा हूं, या अभी भी शुरू करने में जोर लगाता हूं। मैं जोर लगा के यूरिन पास करता हूं, हम इस पर गौर करेंगे। आई ऑलवेज फील आई हैव इनकम्प्लीट एम्प्टिंग। पूरी पेशाब मेरी खाली नहीं होती। समटाइम्स मेरे को रात को पेशाब बेड में ही हो जाता है, मैं यूरिन ड्रॉप ड्रॉप पास कर रहा हूं, मेरे को कभी 20 बार भी यूरिन पास करना पड़ता है। और याद रखिए, मेरी ब्लैडर वेलनेस इतनी अच्छी नहीं है। होल्डिंग यूरिन इज वेरी पेनफुल इन द ब्लैडर। या तो बहुत सीवियर इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन है अंदर में, या इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस, ब्लैडर पेन सिंड्रोम की प्रॉब्लम, जो औरतों में होता है वो पुरुषों में भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल वो रूपरेखा है, वो स्लाइड है जिसके बारे में हम जानते हैं कि ऐसी पॉसिबिलिटी है, इनमें से अगर कुछ भी है तो इज अ मैन ऑन द क्रॉस रोड। ऐसा है क्या कि कहीं ना कहीं उनकी इंप्रूवमेंट नहीं हो पा रही है और ये आगे बढ़ रहा है? बिकॉज ये प्रॉब्लम सिर्फ बॉम्बे अंधेरी का नहीं है, ये सिर्फ कलकत्ता मद्रास का नहीं है, ये बिल्कुल ग्लोबल प्रॉब्लम। पुरुषों में ये हर जगह होता है, तो ये भारतीय लोगों में नहीं होता, ये हर जगह होता है। बिकॉज ये हार्मोन की चेंजेस के साथ प्रोस्टेट अपना चेंज करता है। तो आज 2024 में इस इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म ब्लैडर वेलनेस के द्वारा कोकिलाबेन हॉस्पिटल से जागरूक करने की जरूरत है कि एवरी वन हैज अ रोल। जागरूकता में सबका रोल है। अगर आप 35 साल के और ये सुन रहे हैं, और अगर 75 साल के ये सुन रहे हैं, तो ये सुनने की जरूरत है। बिकॉज प्रोस्टेट हेल्थ की जो चेंज है वो बहुत स्लो और बहुत प्रोग्रेसिव हो रही है। सो वी कैन मेक अ डिफरेंस बाय कंबाइनिंग टुगेदर एंड हैविंग ए ग्रेट टीम वर्क। इमेजिन विदाउट अ टीम वर्क nothing can succeed, it can go in wrong direction. So we can work together, we can do better, we need each other, we can complement each other. आप अपनी कंप्लेंट्स बताएं तो यूरोलॉजिस्ट सामने बैठे हुए आपकी कंप्लेंट्स को भाप लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। एंड देखो, वी कांट डू विदाउट ईच अदर। तो मैं बहुत बार कहता हूं पब्लिक स्पीचेस में कि 40-50 साल के बाद एक यूरोलॉजिस्ट को जानने की जरूरत है। बिकॉज जैसे कार्डियोलॉजी की प्रॉब्लम हो सकती है, न्यूरोलॉजी की प्रॉब्लम हो सकती है, यूरिनरी प्रॉब्लम हो सकती है, और वो बहुत अननोन प्लेसेस में, अननोन टाइम्स में, छुट्टी के दिन, संडे के दिन, कोई और ऐसे कहीं छुट्टी में हो सकती है। तो फ्रेंड्स, वी आर इंडीड पार्टनर्स एज डॉक्टर्स एंड एज सोसाइटी टू टेक द सब्जेक्ट फॉरवर्ड टू द हाईएस्ट लेवल। बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड इट, वी नीड टू चेंज द गोल पोस्ट एज वी अंडरस्टैंड मोर एंड मोर। इस जागरूकता में देयर इज अ लॉट ऑफ इवोल्यूशन हैपनिंग। बहुत गवेषणा हो रही है, बहुत एविडेंस आ चुका है, जहां इस एविडेंस को आज जब सुनते हैं तो आपको आइडिया मिलता है कि ये जो मेरी 24 साल की एक्सपीरियंस है यूरोलॉजी में, और हमारे पूरे यूरोलॉजी मित्र यूरोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया के हर शहर में आपको वही ट्रीट करते हैं कि आपकी एक्सपेक्टेशंस को मैच करें, अपने गोल पोस्ट को आगे लेके जाए। कोई बिल्कुल इमरजेंसी में आया है, कोई बहुत यंग पेशेंट है, आज किसी को मैं देखा उनकी उम्र 38-40 थी, पर वो अपने फादर से भी पुअर फ्लो में थे। तो ये जागरूकता जरूरी है कि उम्र के साथ कोई गड़बड़ नहीं होती है। कोई 40 साल का हो और उसके बाल सारे सफेद हो सकते हैं, कोई 80 साल का हो उसके बाल शायद पूरे के पूरे काले भी हो सकते हैं। तो उम्र के साथ इतनी इंपॉर्टेंट चेंज नहीं होती है, लेकिन ऑब्वियसली उम्र के साथ प्रोग्रेसिव चेंज तो होता है। सो फ्रेंड्स, all those who suffer from urinary complaints, today is a wake up call, at least in a very focused subject called prostate health. जब हम प्रोस्टेट पे आ रहे हैं तो ये याद रहे कि प्रोस्टेट एक ऐसा हिडन ऑर्गन है जो बिल्कुल बॉडी के अंदर है। आप किडनीज हिडन होती हैं जो हम डील करते हैं एज यूरोलॉजिस्ट, जहां यूरिन बनता है, उनकी बीमारियां। यूरेटर्स वो पाइप है जिसमें वो एक कंडुइट है जिसके थ्रू यूरिन किडनी से पीछे से आगे की तरफ आती है। और फिर यूरिनरी ब्लैडर जो बिल्कुल ब्लैडर एब्डोमेन के नीचे वाले ऑर्गन में है, जहां एक बैग की तरह वो स्टोर करता है। और ब्लैडर वेलनेस हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ब्लैडर से जो रास्ता निकलता है उसे यूरेथ्रा कहते हैं, और पुरुषों में यूरेथ्रा का जो पहला पार्ट है उसे प्रोस्टेट ऑक्यूपाई करता है। तो ये बहुत जानने की जरूरत है कि कहीं ना कहीं ये पूरी एनाटॉमी में एक पुरुष जब खड़े हुए हैं तो उनके एक पार्ट में प्रोस्टेट होता है, और उस प्रोस्टेट के बारे में हमारे लिए जानने की बहुत जरूरत है। तो ये जो ब्लैडर है, जिस ब्लैडर को मैं अभी चित्र दे रहा हूं, रंग दे रहा हूं, उसके ठीक नीचे जो एरिया है यहां पे प्रोस्टेट होता है, जिसके बारे में हम गौर करेंगे। तो यूरिनरी ब्लैडर के नेक पे आप देख रहे हैं, ब्लैडर की नेक या इस रूम के एग्जिट पे जहां दरवाजा है, वो दरवाजा एक तरह से यूरिनरी पैसेज को कंट्रोल कर रहा है। हम आ गए उस स्लाइड पे, जिस स्लाइड की मेरे को जरूरत थी, जो बताता है कि हम ब्लैडर वेलनेस की प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं। तो ये हमारा ब्लैडर है, और पुरुषों में ब्लैडर के ठीक नीचे वो ऑर्गन है जिसे हम प्रोस्टेट कहते हैं, और प्रोस्टेट के बीच से वो यूरिनरी पैसेज जाता है जो अब यूरिन बाहर की तरफ जा रहा है। यही है पूरी कहानी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए कि प्रोस्टेट जिसके बीच से यूरिनरी पैसेज जाता है, द प्रोस्टेट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ यूरिन by being the master of the orchestra in terms of allowing the passage to go through the। तो किसी पैसेज के थ्रू जाना मतलब पैसेज का चेंज होने से कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा, तो उससे ब्लैडर की वेलनेस पे भी चोट पहुंचेगी, ब्लैडर बार बार कॉन्टैक्ट करेगी, ब्लैडर खाली नहीं कर पाएगी, और इस पे हम गौर करेंगे। तो कुछ पुरुषों के बारे में बात करते हैं। कोई बहुत यंग है, 25-30-35 साल ऐसी कोई उम्र है, और कहते हैं कि आई टेक अ लॉन्ग टाइम टू स्टार्ट यूरिन। डॉक्टर साहब, मेरे को बहुत समय लगता है, मैं जाता हूं तो बहुत समय लगता है। तो ऐसा है कि कहीं ब्लॉक तो नहीं है?
कभी कुछ चोट लगा था क्रिकेट बॉल से, कोई बाइसिकल इंजरी से, या किसी चीज से चोट लगा, तो उसके बाद ये यूरिनरी पैसेज धीरे धीरे बंद होता चला गया। ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है क्या? तो पॉसिबिलिटी है। किसी को जिसको एक्सीडेंट रहा है, जिसको चोट हुई है, कुछ सर्जरी हुई है, कोई हाई रिस्क एक्सपोजर इन्फेक्शन रहा है, उनकी यूरेथ्रा या यूरिनरी पाइप में ही इन्फेक्शन हो सकता है। इस इन्फेक्शन को अगर समय दिया जाए तो ये इन्फ्लेमेशन होते होते स्ट्रक्चर यूरेथ्रा बन सकता है। तो यूरिनरी पाइप में ब्लॉकेज आए, टेक अ लॉन्ग टाइम टू स्टार्ट यूरिन। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? बिकॉज 20 25 30 35 साल में नॉर्मली प्रोस्टेट की इश्यूज इतनी ज्यादा नहीं होती। हमने कहा था कि एल्डरली आदमी कोई ऐसा है जिनकी प्रोस्टेट बहुत बढ़ चुकी है, और प्रोस्टेट बढ़ते बढ़ते वो यूरिनरी पैसेज को अंदर से ब्लॉक कर रहा है, तो ब्लैडर को बहुत ज्यादा प्रेशर जनरेट करना पड़ता है। आप टॉयलेट में गए, आप तैयार हो गए, आपका ब्लैडर भरा हुआ है, और जब यूरिन पास करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करके यूरिन पास करना चाहिए। आइडियली होता क्या है, ब्लैडर जब भर जाता है और आपको यूरिन लगता है, तो आप जब जिप खोलते हैं तो ब्लैडर ने कॉन्ट्रैक्शन किया, रास्ता खोला, या प्रोस्टेट ने रास्ते को खोला, और फिर यूरिन पुरुषों के अंग से बाहर आती है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि ब्लैडर भरा हुआ है और प्रोस्टेट रास्ते को अंदर से ब्लॉक कर रहा है, तो ब्लैडर पुश करता है और यूरिन नहीं आता है, तो बहुत बार हम पेट से पुश करके यूरिन पास करते हैं। दैट मींस योर ब्लैडर नीड्स टू जनरेट एनफ प्रेशर टू ओवरकम द रेजिस्टेंस व्हिच इज हैपनिंग बिकॉज द लार्ज प्रोस्टेट इज कॉजिंग एन ऑब्स्ट्रक्शन। तो बहुत बार याद रखें, यूरिन पास करने में, शुरू करने में अपने में बहुत मुश्किल होती है। कुछ लोग कहते हैं आई बीन एक्सपीरियंसिंग ब्लीडिंग इन माई यूरिनेशन। अब ये नॉर्मल कभी नहीं है। हम सबकी ब्लीडिंग, यूरिन में कभी ब्लीडिंग होती नहीं है, कभी कोई जलन वगैरह हो सकती है, पर ब्लीडिंग बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। और ऐसा अगर हो रहा है तो बहुत थोड़ी सी ब्लीडिंग हुई, हम घबरा गए, हमने कोई ट्रीटमेंट कराई, थोड़ी इन्वेस्टिगेशन हुई, उसके बाद हम भूल गए। फाइनली पता चला हम उसको भूल गए, या हमने पूरी इन्वेस्टिगेशन नहीं कराई थी, और एक दिन सडनली ये ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है। इसका मतलब है देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ सम डिजीज व्हिच वाज हैपनिंग, हम मिस कर गए। तो इन डिजीजेस में यूरिनरी इन्फेक्शन बहुत पीछे रहता है। इन्फेक्शन में खून बहना इतना कॉमन नहीं है। प्रोस्टेट का इलाज होना, उसकी ब्लड सप्लाई बढ़ना, वो अपने में मुश्किल हो सकता है, बहुत जरूरी है। तो ऑल ब्लीडिंग इन यूरिन हैज टू बी सीन बाय यूरोलॉजिस्ट। ऐसा नहीं हो सकता कि सर हमें 2 साल, दो महीने पहले ब्लीडिंग हुई थी, हम अपॉइंटमेंट लेके आपके पास आ जा रहे हैं। ब्लीडिंग इज एन इमरजेंसी। पेशाब का बंद हो जाना एक इमरजेंसी, बहुत ज्यादा जलन होना एक इमरजेंसी है। तो हमें इन सब चीजों पे जागरूक होने की जरूरत है। मैं लास्ट में कहीं लिखा हुआ है कि इट श्योरली इज नॉट बिकॉज ऑफ समर सीजन में, गर्मी के मौसम में बहुत ज्यादा पेशाब में खून आता है, ऐसा नहीं है। हम पानी कम पीते तो यूरिन में खून आता है, ऐसा सच नहीं है। तो ये सब मिथ्या है जिसपे हम ना विश्वास करें। पॉसिबिलिटी है कोई स्टोन मूव कर रहा है, ब्लैडर में कोई स्टोन है, यूरेटर से कोई स्टोन आ रहा है, बहुत ही सीवियर इन्फेक्शन है, या प्रोस्टेट की बीमारी है। ये प्रोस्टेट में चेंज हो रहा है, जिसमें प्रोस्टेट धीरे धीरे बढ़ के रास्ते को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है, या प्रोस्टेट में कुछ कैंसरस चेंज हो रहा है। तो इस प्रोस्टेट हेल्थ को आगे ले जाने की ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। मैंने शुरू में कहा था our elderly relatives, patients and friends do pass urine multiple times at night. 1 से 2 बार यूरिन जाना शायद नॉर्मल भी हो सकता है, बिकॉज ब्लैडर यूरिन बनाती है और आपकी डीप स्लीप को बहुत बार तोड़ करके आपको बार बार यूरिन भेज सकती है। हम इसे नॉक्ट्यूरिया कहते हैं। 1 से 2 बार नॉर्मल है, पर 2 से ज्यादा बार जाने से क्या होता है, आपकी ये स्लीप साइकिल ब्रेक होती है, फिर आप ये मुश्किल में रहते हैं। ये बच्चों को भी होता है जिसमें बहुत बार बेड वेटिंग होती है, और बुजुर्गों को भी होता है जिसमें हार्मोन की चेंज के कारण किडनी बहुत ज्यादा यूरिन रात को बना रही है, और मैंने कहा था थोड़ी बहुत नींद कम है। सो इम्प्रॉपर स्लीप, यूरिन में समटाइम्स लीक, बार बार जाने की इच्छा होती है, एक सोशल प्रॉब्लम है, और इस तरह से हमें बार बार जाना पड़ता है। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। और बहुत बार लोग प्रोस्टेट की बात करते हैं, लेकिन उनकी मेन प्रॉब्लम नॉक्ट्यूरिया होती है, रात को बार बार जाना। इन सब का ट्रीटमेंट है, आपके यूरोलॉजिस्ट ये सब ट्रीट कर रहे हैं। सातों दिन हम ओपीडी में यही देखते हैं, कोई नॉक्ट्यूरिया लेके आता है, कोई बर्निंग लेके आता है, कोई ब्लीडिंग लेके आता है, कोई किसी की यूरिन खुल के नहीं आ रही, किसी को बार बार जाना पड़ रहा है। ये पूरा संक्षेप में कहानी है जिसे हमें आगे बढ़ाने की जरूरत है। ये ना भूलें कि बहुत बार लोग कहते हैं हम 20 30 साल से यूरिन को स्ट्रेन कर रहे हैं, और उस जमाने में हमें एक बार चोट लगा था, तो कहीं कोई एक्सीडेंट हुई थी, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, कोई इंजरी, यूरिनरी पाइप में ब्लॉकेज था, और हमारी फ्लो इतनी अच्छी नहीं है। तो अगर फ्लो अच्छी नहीं है तो फिर हमें एक टेस्ट करना होता है, जिससे पता चल जाता है हमारी फ्लो कितनी खराब है। तो फ्रेंड्स, प्रोस्टेट ग्लैंड पुरुषों का ग्लैंड है, वो ग्लैंड जो यहाँ मार्क किया हुआ है, और इस ग्लैंड के चेंजेस हमें तंग कर सकते हैं। तो कोई पूछता है इस ग्लैंड का फंक्शन क्या है? तो देखिए, ये ग्लैंड बहुत ही ट्राई जंक्शन पे पड़ा हुआ है। एक तरफ यूरिनरी ब्लैडर के ठीक नीचे है, मतलब इसके थ्रू यूरिनरी पैसेज जा रही है। तो ये एक तरह से बैंड मास्टर ऑफ द एंटायर ऑर्केस्ट्रा, कंट्रोलिंग द यूरिनरी फ्लो। ऑब्वियसली इन यंगर एज ग्रुप रास्ता खुला पड़ा है, यूरिन बिल्कुल खुल के आती है। हम में से बहुत लोग यूरिन पास करते हैं और दीवारों में पेंट कर सकते हैं, तो वो फ्लो खुली पड़ी है। उम्र के साथ साथ ये प्रोस्टेट चेंज होती है, उस चेंज पे बात करेंगे। दूसरा, कहीं सेमिनल पैसेज के थ्रू जो सेमेन आता है, वो भी प्रोस्टेट के थ्रू ही खुल के यूरिनरी पैसेज में आता है। तो ये बहुत जरूरी है कि इस प्रोस्टेट के बारे में जागरूकता हो। आज जब इस प्रोस्टेट के बारे में बात कर रहा हूं, तो अवश्य हम 4 मरीजों के बारे में बात करते हैं, जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। कोई एक 40 साल का है जिन्होंने अपनी हेल्थ चेकअप कराई,
और इस हेल्थ चेकअप में पता चला कि उनकी प्रोस्टेट की साइज अभी 45 ग्राम की है। नॉर्मली प्रोस्टेट 10, 15, 20 ग्राम की होती है। ये वो एक वॉलनट शेप की ग्लैंड है जो ऑब्वियसली हार्मोन रिलेटेड है। हार्मोन के साथ जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, बहुत सी हार्मोन चेंजेस बॉडी में होती हैं, पुरुषों का ये ग्लैंड धीरे धीरे बढ़ने की कोशिश करता है। तो बहुत कॉमनली ये देखने को मिलता है कि हमें यूरिनरी कंप्लेन नहीं है, इनकी कोई कंप्लेन नहीं थी, ये 40 साल के हैं, इन्होंने अपनी हेल्थ चेकअप कराया और हेल्थ चेकअप में पता चला प्रोस्टेट की साइज 45 ग्राम से, भले ही 25 ग्राम का हो या 70 ग्राम का हो, साइज बढ़ी हुई है। ये एक बहुत कॉमन मिथ्या है कि साइज बढ़ती तो हम घबरा जाते हैं। ऐसी कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए। आपकी उम्र भी तो हर साल बढ़ रही है, तो बढ़ेगी तो कुछ चेंजेस होंगे ही होंगे। इन चेंजेस को आपके यूरोलॉजिस्ट संभाल सकते हैं। जब आप अपने यूरोलॉजिस्ट के पास आए 40 साल की उम्र में और कंप्लेन किया, ये हमारा हेल्थ चेकअप है जिसमें बाकी सब टेस्ट नॉर्मल है, पर ये प्रोस्टेट की साइज बढ़ गई है, और अभी आपके यूरोलॉजिस्ट आपके शहरों में देखते हैं और बताते हैं इससे इतनी घबराने की बात नहीं है, पर प्रोस्टेट की साइज अगर बढ़ी हुई है तो ये क्या चेंज लेके आ रही है, हमें जानने की जरूरत है। एंड दैट इज व्हाट वी नीड टू नो बाय द टेस्ट कॉल्ड यूरोफ्लोमेट्री। मेट्री मतलब मेजरमेंट, फ्लो मतलब स्पीड। आपकी यूरिन की स्पीड कितनी अच्छी है। तो याद रहता है कि हम 10, 20, 30 साल के थे तो हमारी फ्लो बिल्कुल जादुई थी, बिल्कुल दूर से जाती थी, पर आज वो नहीं होता। आज हमारी फ्लो धीरे धीरे घटती जा रही है। अगर ये घटती जा रही है, हमें पता है या हमें पता नहीं है, और हमने हेल्थ चेकअप में कुछ देखा है जिसमें प्रोस्टेट की साइज बढ़ रही है, तो आपके यूरोलॉजिस्ट ने जब यूरोफ्लोमेट्री की टेस्ट मांगी तो पता चल जाता है आपकी यूरिन की फ्लो कितनी अच्छी है, और ये सब कुछ डिसाइड करता है। मैंने बताया कि अगर आपके हार्ट के बारे में जानना है तो हम सिर्फ एक ही टेस्ट करते हैं, ईसीजी, और पता चल जाता है आपकी हार्ट की सिचुएशन क्या है। अगर वो पीक्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में कोई चेंज है तो हम आपको नहीं छोड़ते। फिर ऑब्वियसली हम 2D को करेंगे, हम स्ट्रेस को करेंगे, हम एंजियोग्राफी करेंगे, कुछ तो करेंगे जानने के लिए कि हार्ट की चेंजेस क्या हो रही है। अदरवाइज हम हार्ट खोल के नहीं देखते, एमआरआई, सीटी स्कैन नहीं करते, सिर्फ ईसीजी कर लेते हैं। वैसे ही अगर आपकी प्रोस्टेट हेल्थ के बारे में जानना है, ऑब्वियसली आपकी यूरिनरी फ्लो के बारे में जानना है, जिसमें ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन करके यूरिन पुश कर रही है, रास्ता खुल रहा है और यूरिन निकल रहा है। ये ग्रेजुअल चेंज जो हो रहा है, जो चेंज हमारे बस में नहीं है जान पाना, जब तक हम सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होता है। जैसे इनको कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं था, इनकी यूरोफ्लोमेट्री की तो यूरोफ्लोमेट्री थोड़ी सी कम थी, जो उनकी उम्र के आधार पर देखी जाती है। तो यूरोफ्लोमेट्री उतनी अच्छी नहीं, तो एक जागरूकता है, हमारी प्रोस्टेट की साइज बढ़ रही है और हमारी फ्लो घट रही है। हम यहां से किसी 50 साल के पुरुष के पास जाते हैं जो कह रहे हैं कि मेरे को डॉक्टर साहब यूरिनरी कंप्लेन पिछले 3-4 साल से है। तो मैंने बताया था कि 40s में ये प्रॉब्लम लोगों में शुरू हो सकती है, हर किसी में नहीं, और 40s to 50s में ये बता रहे हैं कि मेरे को 3-4 साल से यूरिनरी कंप्लेन है, मेरा यूरिन उतना खुल के नहीं आता है। मैंने अपने फैमिली डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने हमारी सोनोग्राफी की टेस्ट की थी, पीएसए की टेस्ट की थी, यूरिन की टेस्ट की थी, और हमें एक दवाई शुरू की थी। ये दवाई मैं 3-4 साल से खा रहा हूं। तो मेरे क्वेश्चन है, 3-4 साल से दवाई खा रहे तो कितना आराम है। ये दवाई हमारे मित्र, हमारे फैमिली डॉक्टर ने हमें दिया है इसी आशा में कि ये प्रोस्टेट के रास्ते को खोले, हमारी यूरिन खुल के आए। इनकी प्रोस्टेट से 25 ग्राम की है, तो 50 साल में इनकी प्रोस्टेट की साइज बहुत नहीं बढ़ी, जहाँ की 40 साल में मैंने कहा 45 ग्राम की प्रोस्टेट थी। तो मैं प्रोस्टेट की साइज को एक तरह से नकार दे रहा हूं कि बिकॉज वो इतनी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट नहीं हुई। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि आपकी यूरिनरी हेल्थ कितनी अच्छी है, आप अपने डॉक्टर को क्या कंप्लेन कर रहे हैं। तो 40 साल के पुरुष बोलते हैं मेरे को कोई कंप्लेन नहीं है, मैंने हेल्थ चेकअप किया। 50 साल के मरीज बोलते हैं कि मेरी प्रोस्टेट छोटी है डॉक्टर साहब, मेरे छोटे भाई की प्रोस्टेट मेरे से बड़ी है, लेकिन मेरे को 3-4 साल से जो यूरिनरी प्रॉब्लम है वो उतनी ठीक नहीं हुई। तो हम 3-4 साल से दवाई खा रहे हैं और हमें ठीक नहीं हुई, तो हम दवाई क्यों खाए जा रहे हैं। अगर हम पैरासीटामोल खा रहे हैं, हमारी बुखार ठीक नहीं हो रही, मतलब पैरासीटामोल से काम नहीं चलेगा, हमें इंजेक्शन लगेगा, हमें कुछ और लगेगा। कहने का मतलब ये है कि आप दवाई खा रहे हो और आप ठीक नहीं हो रहे हैं, मतलब कुछ प्रोग्रेस कर रहा है, जिसके बारे में आज वार्तालाप हो रही है। तो 50s में कोई है जिसको दवाई खाते खाते भी आराम नहीं मिल रहा है, और जिनकी प्रोस्टेट चेंज हो रही है, जिस चेंज में प्रोस्टेट की साइज नहीं बढ़ी लेकिन अंदर से रास्ता बंद होता जा रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिस पर हम गौर करना चाहिए। 60s में कोई ऐसे हैं जिन्होंने पिछले 10 साल से दवाई खाई है और दवाई खाते खाते कंफर्टेबल थे, लेकिन अभी पिछले 6 महीने से उनकी प्रॉब्लम बढ़ गई है। उनकी प्रॉब्लम क्या बढ़ी है, उनको बार बार यूरिन जाना पड़ता है, वो कंट्रोल नहीं कर पाते। वो आजकल सफेद पैंट पहनते नहीं है, ब्लैक पैंट पहनते हैं मेरे जैसे, कि कहीं यूरिन लीक ना हो जाए। वो घबराते हैं कि यूरिन लीक हो गया तो मैं क्या करूंगा। सो इन 60s ही वॉज गुड ऑन द मेडिकेशन, उनकी अच्छी चल रही थी, उनको अच्छा लग रहा था, और कुछ टेस्ट भी कराते थे बीच बीच में, और आप वो कंट्रोल नहीं कर पाते। पिछले 6 महीने से बार बार जाना पड़ रहा है, रात को भी 3-4 बार बढ़ गया है, और दिन में तो डॉक्टर साहब मेरे को कहीं ना कहीं रुकना पड़ता है, मेरी यूरिन बार बार जाती है। इसका मतलब है कि ऐसा तो नहीं कि ये ब्लैडर बार बार कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। क्यों कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, या तो ये ब्लैडर ओवर एक्टिव हो रही है, या फिर ये रास्ता धीरे धीरे बंद होता जा रहा है और आपकी ब्लैडर अब खाली नहीं कर पा रही, तो ओवर एक्टिव हो रही है सेकेंडरली। तो अगर कोई दवाई खाते खाते कुछ नहीं चेंज हो रहा है तो यूरोलॉजिस्ट को वापस टाइम पे मिलना है, ये 6 महीने वेट करने की जरूरत नहीं थी। 70s में कोई ऐसे हैं जो आए और बोले मेरे कोई कंप्लेन नहीं थी कल रात तक, लेकिन कल रात के बाद इतनी आफत हुई, वो 3-4 घंटे में बहुत मुश्किल में था। मैं आपके कोकिलाबेन हॉस्पिटल में आया रात को 2 बजे,
और यूरिन बिल्कुल पास नहीं कर पाता, ड्रॉप ड्रॉप हो रहा था। उन्होंने मेरे को यूरिनरी कैथेटर लगा दी है और कोई 1 लीटर के आसपास यूरिन आया। मैं आज सुबह आपके पास 8 बजे मिलने आया कि कल तक तो मैं ठीक था, आज कैसे हो गया? तो कल तक आप कभी ठीक नहीं थे, बिकॉज बहुत प्रोग्रेसिव, बहुत स्लो चल रही थी। मैंने कहा था, हाउ डज हेल्थ केयर लुक लाइक इन इंडिया फॉर प्रोस्टेट हेल्थ? सो मेनी टाइम्स इट गोट्स अनरिपोर्टेड, अंडर ट्रीटेड, अंडर डायग्नोज, अंडर नोटिस्ड, बिकॉज इन अ बिजी लाइफस्टाइल विच मैन लीड इन 40s to 80s, बहुत बार ये मिस हो जाता। मैं पता नहीं चलता अपने बारे में। आप अपने हार्ट की टेस्ट ईसीजी करते हैं और डॉक्टर बोलते हैं सब ठीक है, तो आप घर चले जाते हैं। वैसे ही आपकी यूरोलॉजी हेल्थ में यूरोफ्लोमेट्री आपके बारे में बताती है, आपकी डॉक्टर के साथ वार्तालाप आपके बारे में बताती है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू नो अबाउट। और हमने किसी को 80s में देखा जहां उनकी पिछले 2 साल से पेशाब की पाइप लगी हुई है और यूरिन पास नहीं कर पा रहे। तो अगर ये सब चेंजेस हम सबके साथ होने वाला है, तो हम 40s में जागरूक क्यों ना हो, 50s में जागरूक क्यों ना हो, वो जानने की जरूरत है। 3 ऐसी बीमारियां हैं जो प्रोस्टेट को तंग कर सकती है। 3 ऐसी बीमारियां जिसके बारे में बात करते हैं। पहली बीमारी है जिसे हम कहते हैं प्रोस्टेटाइटिस। जब भी आइटिस जुड़ता है मतलब इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन। तो ये किन लोगों में ज्यादा होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ द प्रोस्टेट कॉज बाय एन इन्फ्लेमेटरी इन्फेक्शन। तो होता क्या है, आप देख रहे हैं ये नॉर्मल प्रोस्टेट है, ये येलो सा नॉर्मल प्रोस्टेट है और यूरिनरी पैसेज इसके बीच से जा रहा है। अब अगर इसमें कोई इन्फेक्शन होती, प्रोस्टेट एक उस तरह का वॉलनट शेप ग्लैंड है, जो अगर इन्फेक्ट हुआ तो वो इन्फेक्ट होगा तो इन्फ्लेमेशन होगी, सूजन होगी, दर्द होगा और यूरिनरी पैसेज को तंग कर सकता है। तो कोई यूरिनरी इन्फेक्शन, कोई सेक्सुअल इन्फेक्शन, कोई इस तरह की इन्फेक्शन जहां यूरिन खुल के नहीं आ रहा है, प्रोस्टेट को इन्फ्लेम कर सकता है। जैसे अपेंडिसाइटिस होता है ना, वैसे ही प्रोस्टेटाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन प्रोस्टेट की ग्लैंड का। और ये इन्फ्लेमेशन बहुत ही सीरियस मामला है। पेशाब में जलन होना, दर्द होना, खून निकलना, यूरिन ना हो पाना, फीवर होना। और ये डायबिटिक लोगों में ज्यादा, ऑब्स्ट्रक्टेड लोगों में ज्यादा, जिनकी पहली रुकावट थी। इन्फेक्शन रहता था, दवाइयां खा रहे थे, रुकावट बढ़ती जा रही थी और एक दिन सीवियर इन्फ्लेमेशन हो गया। तो या तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है, अनहाइजीनिक काइंड ऑफ सिचुएशंस है, या फिर यूरिन बहुत ही ब्लॉक्ड है, खुल के नहीं आता है, हम डायबिटिक हैं, कंट्रोल नहीं है और ये इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो गया, हम इसे प्रोस्टेटाइटिस कहते हैं। तो ये अनकॉमन नहीं है। अब इसकी पूरी ट्रीटमेंट, इन्फ्लेमेशन को कम करना, दवाइयों को देना, बहुत बार इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक शुरू करना। तो अगर हमें यूरिन में बर्निंग है, यूरिन में डिस्कम्फर्ट है, तो हम इतना इंतजार नहीं करेंगे। प्रोस्टेटाइटिस बहुत कॉमन फिनोमेना नहीं है, लेकिन ये होने देना नहीं है, बिकॉज हम इन्फेक्शन होने देना नहीं चाहते। तो इसलिए हम अपने प्रोस्टेट हेल्थ को सेफगार्ड कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। हम यहां से आगे बढ़ते हैं, जो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, जो कई 77 से 90% पुरुषों को होता है 40s to 80s में लेकर के, जिसे हम प्रोस्टेट एनलार्जमेंट कहते हैं। बहुत ही जनरल और लूज टर्म लिखा हुआ है, जिसे बीपीएचवी कही जाती है, बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया। होता क्या है, प्रोस्टेट मैंने जैसे बताया उम्र के साथ साथ चेंज हो रही है, और वो चेंज आपको यहाँ दिख रहा है। जो प्रोस्टेट बाएं तरफ के पिक्चर में दिखता है, छोटा सा नॉर्मल प्रोस्टेट है, ब्लैडर वो उसके थ्रू यूरिन पास करेगी, ये धीरे धीरे बढ़ता जाता है। और वर्चुअली 40-50 साल के बाद लोगों इससे अफेक्ट होते हैं। लोग शायद कंप्लेन नहीं करते हैं, पर अफेक्ट तो होते हैं। तो आप में से कोई अगर प्रोस्टेट की ट्रीटमेंट ले रहा है, प्रोस्टेट की इश्यूज हैं, तो अपने क्वेश्चंस छोड़े, हम कुछ क्वेश्चंस को 15-20 मिनटों में आंसर करना चाहते हैं। वैसे मैं सारे क्वेश्चंस आंसर करने की कोशिश कर रहा हूं, इसी जागरूकता में कि कोई चेंज हो रहा है तो उस चेंज के बारे में क्या हो सकता है और अपने डॉक्टरों से मिलने की जरूरत होती है। तो इसके सिम्टम्स क्या होती है? डिफिकल्टी इन यूरिनेशन, ये उम्र के साथ साथ बढ़ता है। पूरी यूरिन पास करने की जो पूरी इशू है, वो धीरे धीरे गड़बड़ होती जाती है। तो प्रोस्टेट जो एक मेल ग्लैंड है जिसके थ्रू यूरिन पास होता है, इसमें अभी सडनली एक बहुत बड़ा चेंज हो जाएगा। ये प्रोस्टेट है जिसके थ्रू हम यूरिन पास कर रहे थे। आप देख रहे हैं हार्मोन्स के कारण ये प्रोस्टेट बढ़ने की कोशिश कर रहा है और रास्ते को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है। ये रास्ता धीरे से अंदर से ब्लॉक होता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये अंदरूनी जो यूरिनरी पैसेज है, जो आप जानते हैं कितनी पतली पैसेज होती है, जो मेल ऑर्गन के थ्रू जाती है, उस यूरिनरी पैसेज को थोड़ा भी टाइट होना, आपकी फ्लो धीरे धीरे घटता जाना और आपको पता ना होना, ये बहुत अनकॉमन प्रॉब्लम नहीं है। और ये प्रॉब्लम को आगे बढ़ाने के लिए जो कुछ डिस्कशन होगी, वो इस स्लाइड के बाद होगी। बिकॉज हम यहाँ बात कर रहे हैं, एक तरफ तो प्रोस्टेट बढ़ के रास्ते को ब्लॉक कर सकता है, दूसरी तरफ ये हार्मोन रिलेटेड ग्लैंड है। हार्मोन रिलेटेड ग्लैंड्स जो होते हैं, प्रोस्टेट हो, ब्रेस्ट हो, इसमें एक तरफ तो चेंज होती है हार्मोन की, दूसरी तरफ कहीं कैंसरस चेंज ना हो जाए। तो इस कैंसरस चेंज के बारे में चौकन्ने होने की जरूरत है। ये बीमारी सिर्फ अमेरिका और इंग्लैंड में नहीं होती, ये पुरुषों की ग्लैंड है, इनकी चेंजेस कहीं भी हो सकती है। तो ये ग्लैंड के साथ इन्फेक्शन होने का डर रहता है। तो ये जागरूकता बहुत जरूरी है कि हम इसे आगे लेके जाएं और बताएं कि प्रोस्टेट की चेंजेस में एक चेंज कैंसरस तरफ हो सकता है। और ये डायग्नोज करने के लिए कोई ऐसी चीज नहीं है कि खून आया तो कैंसर है, जलन हुई तो कैंसर है, रुकावट हुई तो कैंसर है, नहीं। प्रोस्टेट के अंदरूनी चेंज है कैंसर। तो ये पुरुषों की चेंज है, तो पुरुषों में अगर चेंज हो रही है तो हमें जानने की जरूरत है कि ये चेंज हो रही है। तो जो कुछ बीपीएच में होता है प्रोस्टेट के एनलार्जमेंट में, वही सब कुछ प्रोस्टेट कैंसर में भी हो सकता है। बीपीएच बिना आवाज करे आता है, एक दिन पेशाब बंद हो गया 70 साल की उम्र में। वैसे ही कैंसर एक दिन आ सकता है, हमने आपको जांच की, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन की और पता चला अंदर में कैंसर बैठा हुआ है।
तो बहुत बार इससे हम जागरूक करने की कोशिशों में लोगों को प्रोस्टेट हेल्थ के बारे में जगाते हैं। तो पूरी बातचीत आज हो रही है कि जब प्रोस्टेट चेंज हो रहा है तो हो क्या रहा है प्रोस्टेट के अंदर। तो मैं बता रहा था कि ये जो यूरिनरी पैसेज है, जो यूरिनरी पैसेज को मैं मार्क कर रहा हूं, ये यूरिनरी पैसेज पहले बहुत ही चौड़ा था, और ये जो प्रोस्टेट है, ये प्रोस्टेट रास्ते को पहले ब्लॉक नहीं कर रहा था। अब आप देख रहे हैं जैसे उम्र बढ़ रही है, 40 50 60 70, ये यूरिनरी पैसेज धीरे धीरे ब्लॉक होता जा रहा है। तो जब हम पहले यूरिन पास करते थे और जो बहुत खुल के यूरिन होता था, आज वो धीरे धीरे रुक के हो रहा है। तो पूरी यूरिन खुल के नहीं होती है, ये सबसे कॉमन कंप्लेन है। तो अगर देखा जाए तो कंप्लेन्स में ये इंपॉर्टेंट है कि हम जागरूक करें कि किस तरह की कंप्लेन होती है। रास्ता खुल के अगर बंद होता जा रहा है तो यूरिन का धार खुल के नहीं आना है, ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ यूरिन, द स्ट्रीम इज वेरी नैरो, यू टेक टाइम टू एम्प्टी द यूरिन, यू डोंट एम्प्टी द यूरिन कंप्लीटली। आप निकल के आते हैं बोलते मेरी यूरिन पूरी खाली नहीं होती, कुछ यूरिन रह जाता है, पर मेरा हो चुका, मैं और नहीं पास करता। तो एक तो है कि ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ यूरिन, यूरिनरी स्ट्रीम कम होती जा रही है, ब्लैडर पूरा खाली नहीं हो रहा है, और हमें इसमें जोर लगाना पड़ता है। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है हमें जानना। तो आपके डॉक्टर क्या करते हैं? आपके डॉक्टर वो सब टेस्ट करते हैं जब आप आके कंप्लेन करते हैं। तो या तो हेल्थ चेकअप पे 40s में देखा कि प्रोस्टेट की साइज बढ़ रही है पर और कोई कंप्लेन नहीं था, या फिर हम लोगों ने किसी आगंतुक को जो कंप्लेन करने आए या बोले कि मेरे भाई को प्रोस्टेट की इशू है तो मैं भी आया हूं चेक कराने के लिए, तो ऑब्वियसली हम यूरिन की टेस्ट करते हैं सबसे कॉमन। तो यूरिन एक बहुत बड़ा बायोमार्कर है। यूरिन एक तरह का वेस्ट प्रोडक्ट है जो किडनी बनाती है, उसमें सारे वेस्ट प्रोडक्ट लिक्विड फॉर्म में निकलते हैं। ये जानना जरूरी है कि यूरिन का टेस्ट देना कैसे होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पता नहीं होता। आइडियली हम बोलते हैं कि अर्ली मॉर्निंग फर्स्ट स्पेसिमेन सबसे अच्छा रहता है, पर कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। आप सुबह 8 बजे, 10 बजे, 12 बजे, 4 बजे भी यूरिन का सैंपल दे सकते हैं। आपके यूरोलॉजिस्ट सिर्फ दो टेस्ट मांगते हैं, यूरिन रूटीन और यूरिन कल्चर। यूरिन रूटीन वो है जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देखी जाती है, कलर कैसा है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, क्लाउडी है क्या, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, उससे बहुत कुछ मिलता है आपके अंदर के बारे में। तो एक तरह से वो आपकी रिपोर्ट कार्ड है, आपने एग्जाम में जो कुछ लिखा उसकी रिपोर्ट कार्ड देख के बताते हैं आप कितने अच्छे स्टूडेंट है। यूरिन एक तरह का बायोमार्कर है जो बताता है अंदर क्या चल रहा है। यूरिन कल्चर, कल्चर हम तभी देखते हैं जब हमें मालूम है कि किसी को जलन हो रही है, दर्द हो रही है, खुल के नहीं आ रहा है, अंदर में यूरिन काफी इन्फ्लेम्ड इन्फेक्टेड लग रहा है, बुखार हो रहा है, हम तब कल्चर की मांग करते हैं। तो पुरुषों में यह टेस्ट करने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत बार डॉक्टर और मरीज के बीच में हो नहीं पाता और हम गलत सैंपल देते हैं। सैंपल गलत मतलब क्या हुआ? वो सैंपल जो कॉन्टेमिनेटेड है। जितने भी लोग नॉन सर्कमसाइज है, जिनकी प्रेप्यूस या स्किन ऊपर तक कवर कर रही होती है, जो रिलीजियसली नॉन सर्कमसाइज है, जो ज्यूज नहीं है, मुस्लिम्स नहीं है, वो लोग नॉन सर्कमसाइज होते हैं। उन सोसाइटीज में जहां रिलीजियस सर्कमसीजन होती है, हाइजीन पहले ही अच्छा रहता है। लेकिन हम लोग जिनकी सर्कमसीजन नहीं हुई है, उनकी स्किन कवर कर रही होती है, उसमें बैक्टीरिया होते हैं, फंगस होते हैं, रेसिडेंट फ्लोरा होते हैं, और वो आपको इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत बार पुरुषों में इन्फेक्शन उनकी प्रेप्यूशियल बैक्टीरिया के कारण ही अंदर जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हाइजीन के बारे में ज्यादा डिस्कस ना करें, क्योंकि हाइजीन इतनी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जैसे हम हर दिन अपनी हाइजीन मेंटेन करते हैं, स्किन को पीछे करके वॉश करना और सफाई करना जरूरी है, वरना वहां पे बहुत ज्यादा स्मैग्मा जलता है, और ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। ये मैं सुबह से रात बोलते रहता हूँ कि बहुत बार लोगों ने स्किन को पीछे नहीं किया, वॉश नहीं किया है, तो यूरिन का सैंपल कहां से देंगे? उसके बीच से अगर आप सैंपल दे रहे हैं तो सारा सैंपल कॉन्टामिनेटेड है। इन अदर वर्ड्स, whenever you give a urine sample, it's important for you to give the right urinary sample. तो राइट सैंपल क्या है? राइट सैंपल वो है जहां एक नॉन सर्कमसाइज इंडिविजुअल अपने स्किन को पीछे करता है, अच्छे से वॉश करता है, ब्लैडर भरा हुआ यूरिन पास करना शुरू किया, पहला यूरिन टॉयलेट में जा रहा है, और बीच का यूरिन जो आता है उसे हम बॉटल में देते हैं, बिना बॉटल को टच किए, बिना प्रेप्यूस या स्किन को टच किए। सो इट्स इन इफेक्टिव टर्म्स अ मिड स्ट्रीम एंड अ क्लीन कैच स्पेसिमेन। Very important part of the whole theory today, because unless we know how to give a urine sample, सैडली हम यूरिन इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट करते रहते हैं। बैक्टीरिया तो वहां बैठे ही है, वो एरिया कॉन्टामिनेटेड तो है ही, वहां कोई गंगा जल से हमने साफ तो किया नहीं है। तो उसकी सफाई की बात जहां तक है, हमें सफाई रखना, हमें जागरूक होना है कि अगर हम नॉन सर्कमसाइज है, हमारी स्किन बहुत टाइट है और पीछे नहीं जाती है, तो हमें हर तरह की इन्फेक्शन हो सकती है, और हमें बहुत बार उसके लिए ऑपरेट करना पड़ता है, सर्कमसीजन करना पड़ता है। जिसकी स्किन पीछे जा रही है और वो सफाई नहीं कर रहा है, मतलब वो बहुत गलती कर रहा है, बिकॉज अंदर में हाइजीन मेंटेन नहीं हो रही। उसी के थ्रू अगर आप यूरिन दे रहे हैं, जो सैडली बहुत से पुरुष देते हैं, हमने यूरिन का सैंपल 4 बार टेस्ट कराया, 10 बार टेस्ट कराया, हर साल टेस्ट करते हैं, लेकिन देना कैसे ये पता ही नहीं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस प्लेटफॉर्म टू टेल यू that your wellness from bladder wellness platform needs to go by understanding and awareness of the subject. आपको यूरिन कैसे सैंपल देना है, ये बहुत जरूरी है। अल्ट्रासोनोग्राफी वो होता है जहां हम सोनोग्राफी, अल्ट्रासोनोग्राफी कहते हैं, अल्ट्रासाउंड कहते हैं, जहां एक हमारे मित्र डॉक्टर सोनोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, वो सोनोग्राफी की मशीन के द्वारा एसेस करते हैं आपकी किडनीज अच्छी हैं, यूरेटर की यूरिनरी जेट आ रही है, ब्लैडर की वॉल की थिकनेस कैसी है, प्रोस्टेट की साइज कैसी है, और यूरिन पूरा खाली हो रहा है कि नहीं। तो अल्ट्रासोनोग्राफी एक बहुत ही
ऑब्जर्वर ओरिएंटेड टेस्ट है, ऑब्जर्वर ने जो देखा उन्होंने बताया और हमने मान लिया। यूरोफ्लोमेट्री मैंने बताया था, मेट्री मतलब मेजरमेंट, फ्लो मतलब स्पीड। और मैंने बताया कि अगर 40 से 80 साल की उम्र में प्रोस्टेट बढ़ने की कोशिश कर रहा है, बढ़ते हुए शायद साइज तो सोनोलॉजिस्ट बोल दें, लेकिन आप बताएंगे कि फ्लो कितनी गड़बड़ है। तो आप कहते हैं मेरी पेशाब बहुत धीमी आ रही है, मेरी पेशाब ड्रॉप ड्रॉप आ रही है, मेरी पेशाब उतनी जोर से नहीं आती, मेरी यूरिन पूरी खाली नहीं होती है, मेरे को स्टॉप एंड स्टार्ट करना पड़ता है, हम करते हैं रुकते हैं, करते हैं रुकते हैं। तो इस तरह से हमारी प्रॉब्लम बढ़ रही है। ये सब चीजों से पता चलता है। आपकी फ्लोमेट्री की ग्राफ एक तरह की ईसीजी है। मैं उसे कहता हूं ईसीजी ऑफ द ब्लैडर, जो हमें बताता है कि सच्चाई क्या है। अब हम आते हैं पीएसए, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। प्रोस्टेट से निकलता हुआ ये एंटीजन, ये प्रोटीन वो है जो प्रोस्टेट में बनता है और उसके बाद में इसको ब्लड में नापी जाती है। तो ये ब्लड में किसी तरह से बढ़ सकता है। नॉर्मल प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन की जो लेवल्स है पीएसए की, ये 0 to 4 नैनोग्राम पर सेंट है। ये स्टैंडर्ड यूनिवर्सल लेवल है। कुछ लोग 0 to 2.5 देखते हैं फॉर अ स्मॉल कट ऑफ। कहीं के कुछ लैब्स में कुछ रिपोर्टिंग 6.5 तक की जाती है, जो गलत है। तो 0 to 4 नैनोग्राम पर सेंट, जितना कम उतना अच्छा, लेकिन 4 तक नॉर्मल मानी जाती है। पीएसए का बढ़ने के बहुत से कारण होते हैं। सबसे कॉमन कारण मैं मानूंगा इन्फेक्शन। इन्फेक्शन होता है तो पीएसए बहुत ऊंचा छलांग मारता है, एक दिन में, एक हफ्ते में, और हम डर जाते हैं पीएसए को देख करके। तो पीएसए बहुत ही स्लिपरी स्लोप है। ये एक स्पेशलिस्ट के लिए इसको देख करके और गूगल में कंफ्यूज ना हो, ये बहुत जरूरी है। इट्स अ ब्लड टेस्ट। ये सालाना एक बार तो करना ही होता है। तो जितने भी मरीज हैं भारत में 50 साल के बाद, या पुरुष हैं जितने भी, उनको अपने हेल्थ चेकअप में पीएसए साल में एक बार देखने की जरूरत है। अगर आपकी पीएसए बढ़ रही है तो आपकी यूरोलॉजिस्ट ने देखा और आपको एसेस किया और देखा ये पीएसए किस कारण से बढ़ रही है। डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन बहुत बार हम उंगली से जांच करते हैं और प्रोस्टेट को जब फील करते हैं तो सारा आइडिया मिल जाता है कि ये प्रोस्टेट कैंसरस की तरफ तो नहीं जा रही है, कुछ सिग्निफिकेंट चेंज है क्या। और ये हमारी फिंगर कोई लाखों लोग को एग्जामिन कर चुकी है 24 साल में, तो पता चल जाता है क्या डायरेक्शन है। वो सस्पिशन हम क्रिएट करते हैं। तो सस्पिशन के आधार पे, पीएसए के आधार पे हम इसको कोरिलेट करते हुए वो टीम वर्क के द्वारा बाकी टेस्ट करते हैं कि ये पीएसए कोई कहीं सिग्निफिकेंट तो नहीं, वगैरह वगैरह। तो इन सब टेस्ट के बारे में, एक प्रोस्टेट रिलेटेड कंप्लेंट्स के बारे में टेस्ट की जाती है। अब प्रोस्टेट ऐसा है जो किसी भी डायरेक्शन में बढ़ सकता है। मिसाल के तौर पे प्रोस्टेट ब्लैडर के ठीक नीचे है, ब्लैडर है उसके ठीक नीचे प्रोस्टेट है, पर यहां मैं आपको दिखा रहा हूं प्रोस्टेट ब्लैडर के अंदर बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो प्रोस्टेट की ओवर साइज, पूरी ओवरऑल साइज है, उसका इंपैक्ट पेशाब के रास्ते की रुकावट के लिए होता है। एंड वी नीड टू नो दैट दिस ऑब्स्ट्रक्शन कैन कॉज ट्रबल। तो जितने भी लोग सुन रहे हैं और देख रहे हैं उनको पता है कि ये प्रोस्टेट रिलेटेड चेंज हमें तंग कर सकता है और आज इसकी नॉलेज की बहुत जरूरत है। मैं कह रहा था यूरोफ्लोमेट्री इज अबाउट द ईसीजी ऑफ द ब्लैडर। वो जो यूरिनरी फ्लो है, जो मैं बता रहा था, बिल्कुल बेल शेप कर्व है। ये किसी का भी फ्लो हो, ये बेल शेप कर्व जिसमें हमने यूरिन पास करना शुरू किया। एक मिनट के लिए आंख बंद करके सोचिए, तो जब ब्लैडर फुल होता है और आप जाके जिप खोलते हैं और पुरुष की तरह यूरिन पास करके एम करते हैं बिल्कुल पॉट में, तो यूरिन बिल्कुल खुल के आता है, फास्ट आता है, धीरे धीरे फिर स्लो होता जाता है और फिर स्टैकेटो होता है, फिर ड्रॉप ड्रॉप हो सकता है। तो अगर हमने ये देखी आपकी फ्लो कैसी है, हमें आइडिया मिल जाता है कि रेसिडुअल वॉल्यूम कितना है, कैसे पास किया आपने, कितना पास किया और क्या बचा, और ये हमें सब कुछ के बारे में बताता है। तो आज ये जानना बहुत जरूरी है कि प्रोस्टेट की चेंजेस होने वाली हैं, हम उसे रोक नहीं पाएंगे, और चेंजेस के साथ साथ हमें आगे बढ़ना होता है। तो मैंने कहा था प्रोस्टेटाइटिस वो प्रोस्टेटिक इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन है जिसमें आपको पेशाब में जलन हो रही है, दर्द हो रहा है कुछ दिनों से, कुछ हफ्तों से, या तो कोई रास्ते में रुकावट है या कोई इन्फेक्शन हो सकती है जिसके कारण। पुरुषों में इन्फेक्शन सिर्फ 4 कारणों से होता है। सिर्फ 4 कारण है कि यूरिनरी इन्फेक्शन हो सकता है। या तो ये फाइमोसिस है, स्किन बहुत टाइट है, पीछे नहीं जाता, हम सफाई नहीं कर पाते, या यूरेथ्रा, यूरिनरी पाइप में कोई ब्लॉकेज है जिसे हम स्ट्रक्चर यूरेथ्रा कहते हैं, या ये प्रोस्टेट उम्र के साथ साथ बढ़े ना बढ़े लेकिन रास्ते को अंदर से ब्लॉक कर रही है। तो 20 ग्राम का प्रोस्टेट भी रास्ते को अंदर से ब्लॉक कर सकता है, और 40 साल की उम्र में भी प्रोस्टेट रास्ते को अंदर से ब्लॉक कर सकती है। 80 साल की उम्र में भी प्रोस्टेट शायद बढ़ जाए पर रास्ते को अंदर से ब्लॉक ना करे, या 80 साल की उम्र में भी प्रोस्टेट बहुत बड़ी हो लेकिन अंदर से रास्ते को ब्लॉक नहीं करे। तो उम्र नहीं देखते, प्रोस्टेट की साइज नहीं देखते हैं, आपकी कंप्लेन देखते हैं, या आपकी पैरामीटर्स, प्रोस्टेट की साइज, पीएसए, आपकी रेसिडुअल वॉल्यूम को देखते हुए हम सोनोग्राफी में देख के ये आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या चेंज हो रही है जो एक मनुष्य को पता नहीं चल रहा। तो ऑब्वियसली इसकी ट्रीटमेंट की जो बात होती है उसमें मेडिकल ट्रीटमेंट करते हैं। मेडिकल, प्रोस्टेट एक ऐसी इशू है जहां मेडिकल ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है, सर्जिकल ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है। आपको पता है फीवर के लिए आप पैरासिटामोल, क्रोसिन और डोलो ही लेते रहते हैं, पर ये फीवर नहीं है, ये मेडिकल बीमारी नहीं है। ये और बात है कि अगर हम आज जागरूक हुए तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। वी कैन प्रॉब्ली प्रिवेंट अ ट्रबल विच कैन हैपन टू ऑल और टू नन ओनली बाय एन अवेयरनेस। तो ये अवेयरनेस पब्लिक प्लेटफॉर्म और पब्लिक डोमेन में बहुत हद तक मिसी है। एज ए यूरोलॉजिस्ट और बाकी हम जितने भी यूरोलॉजिस्ट हैं इस देश में, हमारी संख्या शायद 5-7 हजार ही होगी, पर हर शहर में यूरोलॉजिस्ट आपको यही जागरूक करना चाहते हैं कि यूरिनरी प्रॉब्लम तो होने वाली है,
वो प्रोग्रेसिव होगी, बहुत स्लो होगी। एक ही दिन सडनली इन्फेक्शन हो सकता है। और मैंने कहा इन्फेक्शन के 4 कारण थे। एक तो फाइमोसिस, जहां हम सफाई नहीं कर पाए, स्किन बहुत टाइट है, स्मेग्मा जमता है, सेक्सुअल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। दूसरा यूरेथ्रा, यूरिनरी पाइप में रुकावट है, जिसे हम स्ट्रिक्चर यूरेथ्रा कहते हैं। स्ट्रिक्चर यूरेथ्रा या नैरोइंग इन द यूरिनरी पाइप, जिसकी ट्रीटमेंट हम एंडोलुमिनल ट्रीटमेंट लेजर से करते हैं, या करेक्टिव ट्रीटमेंट जो हम कोकिलाबेन हॉस्पिटल में यूरेथ्रोप्लास्टी के द्वारा करते हैं, जिसमें यूरिन बंद हो रहा है, रुक रुक के आ रहा है। वो यंग पेशेंट्स में होता है, 10 20 30 40 50, या बुजुर्गों में, या एक्सीडेंट के बाद, ट्रॉमा के बाद होता है। प्रोस्टेट उम्र के साथ साथ बढ़ के हार्मोन चेंजेस कर रही है और ब्लॉक कर सकती है। और चौथा कॉमन कारण जो पुरुषों में या औरतों में इन्फेक्शन हो सकता है, ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं कर रही है, ब्लैडर यूरिन खाली नहीं कर पा रही। तो ये बहुत जरूरी है जानना कि ब्लैडर अगर यूरिन खाली नहीं कर पा रही है तो क्यों नहीं खाली कर पा रही, या तो प्रोस्टेट में रुकावट है, या ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन करके पुश नहीं कर पाती। हमने कुछ देर पहले बात किया था कि ब्लैडर वेलनेस में ब्लैडर बहुत कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो शैतान बच्चे की तरह बार बार कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, यूरिन जाना पड़ रहा है। अगर ऐसा हुआ कि ब्लैडर सो गई, ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर रही है, तो बहुत से लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटिक लोगों में ब्लैडर अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती है, उसकी सेंसेशन घटती जाती है, उसकी कॉन्ट्रैक्शन पावर घटते जाते हैं, एंड लॉट ऑफ पीपल कैन नॉट पास यूरिन, यूरिन खुल के नहीं आती है, और हम सब फिर चाबुक मार रहे होते हैं प्रोस्टेट को। सो अगर कोई ऐसा है जिसको 10 15 20 साल से डायबिटीज है, डायबिटीज कंट्रोल नहीं है, या 10 15 20 साल से डायबिटीज है, उनकी ब्लैडर के अंदर की लाइनिंग की सेंसेशन घट सकती है, उनकी यूरिनरी ब्लैडर की आउटर लाइनिंग जो पावर है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, वो घट सकती है। ऐसे लोग बहुत बार बहुत हाई यूरिनरी वॉल्यूम लेके आते हैं, ब्लैडर पूरी खाली नहीं हो रही है, 200 400 500 ml भरा हुआ है, कैथेटर लगा हुआ है, पाइप लग जाता है, बिकॉज यूरिन खाली नहीं होता है। तो होता क्या है, लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज में, स्पाइनल डिजीजेस में, ब्रेन डिजीजेस में जो न्यूरोलॉजिकल चेंज हो रही है, वो ब्लैडर वेलनेस को कम कर देती है, ब्लैडर की अंडरस्टैंडिंग, ब्लैडर की जो पूरी सेंसेशन है वो घटती है। तो इसके बाद ब्लैडर यूरिन खाली नहीं कर पाती, बिकॉज पहला काम तो ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन है, दूसरा काम है रास्ता खोलना। तो अगर ब्लैडर पुश ही नहीं कर रही है, ब्लैडर में सेंसेशन ही नहीं है, आपको यूरिन की इच्छा नहीं हो रही है, तो बहुत हद तक मिस कर रहे हैं। तो हम में से जो भी डायबिटिक है और लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज है और प्रोस्टेट की दवाइयां खा रहे हैं और आराम नहीं मिल रहा है, तो कहीं हम कुछ मिस तो नहीं कर रहे। ये बहुत जानना जरूरी होता है। फ्रेंड्स, हम अलग अलग तरह की ट्रीटमेंट करते हैं, जिसमें हम प्रोस्टेट की ग्लैंड को इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं, तो प्रोस्टेट को श्रिंक करने की कोशिश करते हैं, यूरिनरी फ्लो को इंप्रूव करते हैं। इसमें अल्फा ब्लॉकर्स होती हैं, और इसमें हजारों नाम हैं, इतनी सारी दवाइयां होती हैं जो यूरिनरी पैसेज को खोलती हैं। मैकेनिकली नहीं खोलती, पर उनकी जो अल्फा ब्लॉकेड होती है वो इस तरह से होती है, रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती है और पैसेज खुलता है, यूरिन सडनली खुल के आना शुरू होता है। एक दिन, एक हफ्ते, एक महीने में हमारी यूरिन की फ्लो अच्छी हो गई, जो रुक रुक के आ रही थी, बहुत जरूरी है। तो यूरिनरी फ्लो और भी खुल के आती है। सो वंस द यूरिनरी फ्लो इज इंप्रूव्ड, लाइफ गेट्स बेटर। जब ये हो रहा होता है तो बहुत बार हम ये भी देखते हैं कि प्रोस्टेट की साइज को श्रिंक करने की कोशिश करें। मैंने शुरू में कहा था हमारी उम्र बढ़ती जाएगी, आज 50 है तो कल 55, फिर 60, फिर 65, उम्र बढ़ती जाएगी, हम उम्र को कम नहीं कर पाएंगे। पर आपके यूरोलॉजिस्ट आपके शहरों में अगर प्रोस्टेट 30 40 ग्राम से ज्यादा है, तो वो दवाइयां देते हैं, जैसे हम कहते हैं 5 अल्फा रेडक्टेज इनहिबिटर्स, जिसके द्वारा हम प्रोस्टेट की ग्लैंड को धीरे धीरे श्रिंक करते जाते हैं। तो ये उन लोगों में जिनमें ये बिल्कुल इमरजेंट नहीं है, बहुत ही एग्रेसिव और बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं है। जिन लोगों में हम हेल्थ चेकअप पे देखे यूरिनरी फ्लो थोड़ी घटती जा रही है, यूरिन फ्लो इतनी अच्छी नहीं हो रही है, एक तरफ हमने अल्फा ब्लॉकर शुरू किया, दूसरी तरफ हमने 5 अल्फा रेडक्टेज शुरू किया, और दोनों दवाइयों को जोड़ते हुए हम फ्लो को और भी इंप्रूव कर रहे हैं। तो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम को जानने की जरूरत है कि आपकी अगर प्रोस्टेट की साइज बढ़ रही होगी, 40 50 60 70 ग्राम की ग्लैंड होगी, आपके यूरोलॉजिस्ट अवश्य ड्यूटास्टेरॉइड की दवाई, फिनास्टेरॉइड की दवाई देते हैं, जिससे आपकी प्रोस्टेट की साइज को बढ़ने न देने की कोशिश करें। अब इसकी उम्र के साथ साथ बढ़ता जाएगा, और ये जानने के लिए हम फॉलो अप करने की कोशिश करते हैं, तो बहुत जरूरी है इसके बारे में जानना। तो ये सब करते करते मैंने बताया कि प्रोस्टेट की बीमारी हर समय मेडिकली ट्रीट नहीं हो पाएगी, क्योंकि रास्ता अंदर से धीरे धीरे ब्लॉक हो रहा है, और किसी को 40 साल में, किसी को 80 साल में, प्रोग्रेसिवली बहुत होता है। तो कहीं ना कहीं सर्जरी की जरूरत पड़ती है, जहां हम दूरबीन के रास्ते, लेजर के रास्ते, या टीओआरपी के रास्ते, बहुत बहुत नई नई टेक्निक्स आ रही हैं, जिसके द्वारा प्रोस्टेट को अंदर से ही खाली कर देते हैं। वो रास्ता जो अंदर से ब्लॉक हो रहा है, उसे हम अंदर से ऑपरेट करके निकालते हैं। मिसाल के तौर पे गोल्ड स्टैंडर्ड टीओआरपी, जहां प्रोस्टेट को अंदर से ही खाली कर देते हैं, वो गुफा बन जाता है, जो गुफा शायद बचपन में था। जैसे एक नारियल होता है, अंदर से आपने खा लिया, बाहर का छिलका छोड़ दिया, तो इस तरह से यूरिन खुल के आने की कोशिश करती है, जो उन लोगों में जिनमें रीजन है ऑपरेट करने के लिए। तो ये डिसीजन भी डॉक्टर लेते हैं कुछ एविडेंस के आधार पे। तो आजकल एविडेंस बेस्ड थेरेपी में देखते हैं आपकी यूरिन रुक रुक के आती है, दवाइयां काम नहीं कर रही हैं, कल यूरिन कैथेटर लग गई और यूरिन खुल के नहीं आ रहा है। ऐसे कंडीशन में खुल के क्यों नहीं आ रहा जानने के लिए हम अगला टेस्ट करते हैं, यूरोडायनेमिक्स, जो बताती है कि ब्लैडर की पावर अच्छी है, तो ये रास्ता क्यों बंद पड़ा, और रास्ते को खोलने की जरूरत है। तो ये पूरा एस्पेक्ट सर्जरी के बारे में होता है। तो सर्जरी उन्हीं में करते हैं जिनमें रुकावट बहुत आगे जा चुकी है, दवाइयां काम नहीं आ रही है,
ये दवाई का खाना व्यथा है कि आप दवाई खाए जा रहे हैं इसी आशा में कि सब कुछ ठीक चल रहा है और प्रॉब्लम बढ़ रही है। तो आज इस प्लेटफॉर्म से ये जानना जरूरी है कि हम उम्र देख के ऑपरेट नहीं करते। हम 40-50 साल में भी प्रोस्टेट को ऑपरेट करना पड़ेगा तो करेंगे, क्योंकि यूरोडायनामिक्स दिखा रही कि रास्ता बिल्कुल बंद है। अब रास्ता बंद है तो ब्लैडर कब तक नॉक करेगी? एक दिन ब्लैडर हार जाएगी। और हम बुजुर्गों को इससे वंचित नहीं करते। कोई 60, 70, 80, 90 का है तो भी उनकी रास्ता बंद हो रही, वो अदरवाइज फिट है, तो हमें उस रास्ते को खोलने की जरूरत है जो हमने दवाइयों से नहीं की या दवाइयां फेल हो रही थी। मिसाल के तौर पर मैं अगर आपको दिखाता हूं, तो ऐसे एक मरीज थे जिनकी उम्र 105 साल थी। ये सिर्फ दिखाने के लिए कि उस उम्र में भी हम ट्रीटमेंट करना चाहते हैं और ट्रीट कर सकते हैं। उनकी पेशाब पूरी बंद हो गई थी, पेशाब की नली जा नहीं रही थी, और आज से 7-8 साल पहले हमने उनको दूरबीन के रास्ते प्रोस्टेट की ऑपरेशन की थी। वो बिल्कुल ठीक ठाक रहे। उनकी देहांत भले 110 साल की उम्र में हुई, पर बिल्कुल ठीक रहे। तो कहने का मतलब ये है कि प्रोस्टेट की इशू को पोस्टपोन नहीं कर सकते। उन्होंने डिमांड की कि मेरा पेशाब बंद है, हमें ठीक होने की जरूरत है। तो प्रोस्टेट की इश्यूज को आगे बढ़ाते बढ़ाते एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हम मिस न करें, जो बहुत बार हमें डराता है, उसे हम कहते हैं कैंसर प्रोस्टेट। पर इसमें डरने की कोई बात नहीं है। ये हार्मोन रिलेटेड ग्लैंड में अगर एक चेंज होता है कैंसर, तो आज इसकी ट्रीटमेंट और जागरूकता अवेलेबल है। आज हम इसे अलग अलग तरीकों से ट्रीट कर रहे हैं। कोकिलाबेन हॉस्पिटल, जहां डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी में इस तरह की ट्रीटमेंट होती है, जहां कुछ लोगों को दवाइयों से, कुछ लोगों को इंजेक्शन से, कुछ लोगों को सर्जरी से हम ट्रीट करते हैं। कैंसर प्रोस्टेट किस तरह से प्रेजेंट करता है, तो इसकी प्रेजेंटेशन भी वैसी हो सकती है जिसमें प्रोस्टेट एनलार्ज है। तो अगर कोई 60, 70, 80 ग्राम का ग्लैंड है, तो कोई जरूरी नहीं कि ये बीपीएच या बेनाइन ग्लैंड है, इसमें कैंसरस चेंज हो सकती है। इसीलिए प्रोस्टेट चेंजेस के लिए आपको अपने यूरोलॉजिस्ट को 6 महीने में, साल में एक बार दिखाना पड़ता है। बहुत बार वो डिसाइड करते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है, आप साल में एक बार आओ। तो ये जानना बहुत जरूरी होता है। कभी कभी पता चला कि हमने सिर्फ हेल्थ चेकअप कराई या ब्लड की टेस्ट कराई और पीए से बहुत बड़ा हुआ है। बहुत बार ये डिजीज बहुत फैली हुई मिलती है और फिर हमें डिजीज को बिल्कुल कंट्रोल करना पड़ता है, बिकॉज ये एक हार्मोन रिलेटेड ट्यूमर है। हम हार्मोन की चेंजेस करेंगे तो शायद प्रोस्टेट कैंसर को पूरा काबू कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये बीमारी अनकॉमन नहीं है। दिस इज अनफॉर्चुनेटली गेटिंग मोर एंड मोर कॉमन, कैंसर प्रोस्टेट। ये एल्डरली लोगों में तो होता ही है। मैं बहुत बार कहता हूं कि जैसे 80 साल की उम्र में 80% लोगों के बाल सफेद हो सकते हैं, वैसे 80 साल की उम्र में 80% लोगों के अंदर कैंसर प्रोस्टेट बैठा होगा। शायद उनको तंग ना करे, उनको प्रोस्टेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपने में बहुत कंफर्टेबल है, लेकिन हाँ, चेंजेस तो अंदर हो रहे हैं और ये पैथोलॉजिकल चेंज है। बहुत ही यंग पेशेंट्स में मैंने देखा है कि 47, 51, 57 और 65 की उम्र में भी हमने लोगों को ऑपरेट किया है। डिजीज बहुत यंग पेशेंट में बहुत ही हाई ग्रेड और एग्रेसिव डिजीज हो सकती है। तो इसके लिए क्या करना है? इसके लिए मैंने बताया 50 साल के बाद हमें अपनी यूरिनरी हेल्थ के बारे में जागरूक होना है। तो जितने भी लोग आज 40, 50, 60, 70, 80 साल के ये सुन रहे हैं, जिनके रिलेटिव्स इस उम्र के हैं, अगर उनको यूरिनरी कंप्लेन होती है, तो स्क्रीनिंग का एक तरीका जिसमें आपके यूरोलॉजिस्ट आपके शहरों में आपको इवालुएट करते हैं, एग्जामिन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। वो आगे उस दिशा में बढ़ते हैं जहां आपकी यूरिनरी पैसेज की रुकावट को ठीक करें, आपको जागरूक करें, आपको फॉलो अप करें मंथली या 3 मंथली या ईयरली जैसे भी। और एक तरफ अगर कोई कैंसर प्रोस्टेट की डाउट है तो उसको इवालुएट करें। आपको डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन में देखें, सीरम पीएसए को देखें, सोनोग्राफी की, कोई ट्रांसरेक्टल प्रोस्टेट की बायोप्सी की, प्रूव करने के लिए कि उनकी सस्पिशन सचमुच कैंसर है क्या। और फिर पेट स्कैन करके देखते हैं कि ये प्रोस्टेट की कैंसर स्प्रेड तो नहीं हुई। स्प्रेड नहीं हुई तो हम आज प्रोस्टेट कैंसर को रोबोटिकली निकाल देते हैं। पिछले 24 साल से जब से मैं प्रोस्टेट की ट्रीटमेंट कर रहा हूं, एक तरफ तो प्रोस्टेट की बेनाइन ट्रीटमेंट करते हैं, एक तरफ कैंसरस ट्रीटमेंट करते हैं। तो जागरूकता बहुत जरूरी है, बिकॉज ये मिसिंग है। मैंने कहा प्रोस्टेट कैंसर की ट्रीटमेंट बहुत तरीकों से होती है। एक्टिव सर्वेलेंस भी वो जहां बहुत लो ग्रेड ट्यूमर है, 60, 70, 80, 90 के पेशेंट, और बिल्कुल कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, कोई ट्रबल नहीं है, बहुत क्लोजली उनको वॉच करते रहते हैं और वॉचफुल वेटिंग होती है। वो बहुत कम पेशेंट्स में करते हैं। लेकिन प्रोस्टेट कैंसर अगर लोकलाइज है, अगर ये स्प्रेड नहीं हुई, तो हम प्रोस्टेट को रिमूव कर देते हैं, प्रोस्टेटेक्टमी, जैसे हम बोलते हैं एडेनॉइडेक्टमी, अपेंडिसेक्टमी, वैसे ही प्रोस्टेट को पूरा निकाल देते हैं ताकि पूरी प्रोस्टेट पूरी हट जाए। बीपीएच की जो ट्रीटमेंट होती है जिसमें बेनाइन ग्लैंड्स है और हम अगर ऑपरेट करते हैं तो सिर्फ अंदर का रास्ता खाली करते हैं, जैसे हमने बताया कोकोनट अंदर से खा लिया, बाल का छिलका छोड़ दिया। लेकिन जब प्रोस्टेट कैंसर की ट्रीटमेंट करता हूं मैं, तो हम रोबोटिकली कैंसर को पूरा अंदर से निकालने की कोशिश करते हैं। इसके साथ बाकी भी ट्रीटमेंट्स हैं, लेकिन आज ये जागरूकता है कि अवेयरनेस सच एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि हम इसको आगे बढ़ने और टाइम पे। तो पूरे भारत में ये इंपॉर्टेंट है कि हम इसे टाइम पे पकड़ें और सचमुच टाइम पे ही लेके जाएं, बहुत जरूरी है। तो प्रोस्टेट कैंसर की अवेयरनेस आज शहर में है, दुनिया में है, सब जगह में है, और सोसाइटी पहचानती है। तो हम एनुअल चेकअप्स में पीएसए करते हैं, आपके यूरोलॉजिस्ट आपको एग्जामिन करते हैं, और बहुत बार पीएसए नॉर्मल हो सकती है और फिर भी प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है। बहुत बार पीएसए बहुत बड़ी होगी और प्रोस्टेट में कोई कैंसर नहीं है। तो पीएसए बहुत ही सरोगेट मार्कर है। पीएसए एक ऑर्गन स्पेसिफिक मार्कर है, एक कैंसर स्पेसिफिक मार्कर ऑलमोस्ट नहीं है।
तो पीएसए बहुत से कारण से बढ़ती है। मैंने कहा इस शहर में जहां हम रहते हैं 50,000 ऐसे लोग हैं जिनकी पीएसए 10 से लेकर 100 के बीच में, उनकी बायोप्सी हो चुकी है, उनको प्रोस्टेटाइटिस है जो बहुत कॉमन रीजन है, और वो अपने घरों में बिल्कुल ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज प्रोस्टेट अवेयरनेस की पॉजिटिविटी में हम आगे बढ़ने के लिए ये गुड न्यूज फैला रहे थे कि जितने भी लोग इस ब्लैडर वेलनेस की प्लेटफॉर्म से सुन रहे हैं, उनको पता होना चाहिए कि इस चीज को हम आगे ले जाना चाहते हैं और हम लोगों को जगाना चाहते हैं, वो जागरूकता जिसमें आप अपने हेल्थ के बारे में जानें। अगर आपको कोई कंप्लेन नहीं है तो आप एनुअल हेल्थ चेकअप कराएं। हेल्थ चेकअप में पीएसए की रिपोर्ट, ब्लैडर की रिपोर्ट, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट से हमें आइडिया मिलता है क्या है। आपके यूरोलॉजी से ये सब चीजों को निचोड़ देखेंगे, लेकिन वो रिपोर्ट जो मैंने कहा यूरोफ्लोमेट्री बताएगी कि आप 50 साल में कितने यंग हैं और कितने कम यंग होते जा रहे हैं। सो आर यू यंग और लेस यंगर विल बी डिसाइडेड बाय योर परफॉर्मेंस when you do a Euroflowmetry where you pass urine in a computerized toilet. So finally, friends, it is treatable and it's curable provided we meet each other in time. Just because I'm speaking from the bladder wellness platform, बिफोर वी कम बैक टू यू नेक्स्ट मंथ, ये इंपॉर्टेंट है कि यूरिनरी ब्लैडर के बारे में जा रहे हैं, जो अपने में बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। जैसे औरतों में यूरिनरी इंकॉन्टिनेंस या लीकेज होता है, पुरुषों में भी ये लीकेज हो सकता है। ब्लैडर अपने में एक स्टोरेज ऑर्गन है, जैसे आपकी बैग एक स्टोरेज ऑर्गन है, और किडनी से यूरिन आती है, ब्लैडर स्टोर करती है, अंदर की लाइनिंग सेंस करती है कि मैं यूरिन भागना है या मैं जलन हो रही है या दर्द हो रहा है, और बाहर की जो मसल की लाइनिंग है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है। तो इसकी कैपेसिटी बहुत है। ये ना करें कि हम 4 घंटे बाद ही यूरिन जाएंगे, हमें यूरिन लगा तो हम टॉयलेट में जाएं, पब्लिक टॉयलेट में जाएं, अपने टॉयलेट में जाएं, टॉयलेट की मैपिंग करें, क्योंकि हम कन्वीनियंटली अपने ब्लैडर को खाली करें और ब्लैडर आपको हेल्प कर रही है। सो डोंट पोस्टपोन यूरिनेशन टू अ पॉइंट इन टाइम वेयर दिस इलास्टिक ब्लैडर फॉरगेट्स इट ऑल वेयर, और आपकी ब्लैडर फिर ओवर एक्टिव से अंडर एक्टिव ना बन जाए। आप जब बलून को फुला देते हैं बर्थडे के दिन, वो छोटी सी बलून बिल्कुल सुंदर लगती है और पूरे घर में सुंदरता होती है, आपने इन बलून्स को अगर डिफ्लेट नहीं किया और इन्हें एक हफ्ते एक महीने छोड़ दिया, तो ये फिर बलून फिर वो छोटे नहीं रहते, इनकी इलास्टिसिटी खत्म हो गई, ये ब्लैडर बलून भर चुके हैं और इनकी इलास्टिसिटी खत्म हो गई, ये सब अंडर एक्टिव हो गए। आपने उसकी एयर निकाली तो छोटा सा बिल्कुल गुब्बारा रहता है, लेकिन बहुत लूज गुब्बारा रहता है। ब्लैडर को इस तरह से लूज ना होने दें, अपनी यूरिनेशन को बिल्कुल पोस्टपोन ना करें। यूरिन लगा तो ऑब्वियसली कंट्रोल करना है, लेकिन कॉन्टिनेंस की जो बात होती है जिसमें ब्लैडर खुद ही कॉन्ट्रैक्ट करे और यूरिन लीक हो जाए, वो हमें होने नहीं देना होता है, जिसके लिए हम आज बात कर रहे थे, जो पुरुषों को भी होता है, जिसे हम कहते हैं ओवर एक्टिव ब्लैडर, जिसमें पता नहीं कब कहाँ कहीं बैठे हुए हैं, खड़े हैं, छुट्टी पे हैं, रात है, और सडनली ब्लैडर ने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। तो नॉर्मल ब्लैडर वो है जो हमारे बस में है, और ओवर एक्टिव ब्लैडर है जो हमारी बात नहीं मानता। बहुत से पुरुष आते हैं, रात को बार बार यूरिन जा रही है, उसकी ट्रीटमेंट अवेलेबल है, तो रात को 5-7 बार क्यों जगना है, अगले दिन सुबह गड़बड़ क्यों लेना है। तो नॉक्ट्यूरिया इज ट्रीटेबल, रात को बार बार जाना। ओवर एक्टिव ब्लैडर इज ट्रीटेबल, हम यूरिन कंट्रोल नहीं कर पाते, हम पानी कम पी रहे हैं, हम टॉयलेट्स खोजे जा रहे हैं, लेकिन हम यूरोलॉजिस्ट के पास नहीं जाते, और इस तरह से हम प्रॉब्लम हमारी बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स, ओवर एक्टिव ब्लैडर भी एक फिनोमिना है जो पुरुषों को हो सकता है, और ये पुरुषों को होते वक्त बहुत जरूरी है कि हम जाने की अगर हमें अर्जेंसी है, सडन कंपेलिंग डिजायर, आगे में अर्ज इनकॉन्टिनेंस, हमारी यूरिन यहाँ वहां लीक हो जाती है और बहुत फ्रीक्वेंसी हो रही है, और नॉक्ट्यूरिया हो रही, रात को बार बार जा रहा है, या यूरिन ड्रिबल करता है, तो हमारे लिए जरूरी है कि हम प्रोस्टेट के बारे में जानें, बिकॉज प्रोस्टेट का बढ़ना भी ये कर सकता है। तो मैं आपको जो बता रहा था, जिसमें ये प्रोस्टेट यूरिनरी ब्लैडर के नीचे है, जो मैंने अभी एनोटेट किया, और ये प्रोस्टेट ब्लैडर के अंदर भी बढ़ सकती है और बड़ी सी मीडियन लोब बढ़ सकती है, या ये प्रोस्टेट अंदर ना बढ़े लेकिन यहां इस रास्ते को अंदर ब्लॉक कर रही है, तो यूरिनरी पैसेज धीरे धीरे टाइट होता जा रहा है बीच में, या फिर ये है जो प्रोस्टेट ब्लैडर के अंदर भी बढ़ी और यहां भी बढ़ी और सब जगह बढ़ी, और यूरिनरी पैसेज को अंदर से पूरा ब्लॉक कर रही है। तो या तो ये बाइलोबर या ट्राइलोबर प्रोस्टेट रास्ते को अंदर से ब्लॉक करती है। तो फ्रेंड्स, इस चेंज के कारण यूरिनरी पैसेज ब्लॉक होता है, जो मैंने आपको बताया था, और ये ब्लॉकेज होता ही जा सकता है। So as changes happen, it is important for a man on the opposite side of this that the motivation is there for us to get treated. ये बहुत जरूरी है that we reincarnate ourselves and understand that we don't want to let the urinary problem happen to us. ये बहुत जरूरी है कि हम इसे मिस ना कर जाएं। तो फ्रेंड्स, आज इस पूरी वार्तालाप में ये जरूरी था जगाना कि प्रोस्टेट की चेंजेस होंगी। हम 40, 50, 60, 70 साल की उम्र जैसे जाते जाएंगे, प्रोस्टेट एक हार्मोन रिलेटेड ग्लैंड के कारण आगे से अंदर से बंद होता जाएगा। उसका अंदर से बंद होना आपकी यूरिनरी पैसेज को चेंज करता है, और धीरे धीरे यूरिनरी फ्लो घटती जा सकती है। अगर ये घट रही है और फ्लो उतनी खुल के नहीं आती है, हमें टाइम लगता है, हमें जोर लगाना पड़ता है, हम पेट से जोर लगाते हैं, जैसे कॉन्स्टिपेशन में जोर लगाना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं हम कुछ मिस कर रहे हैं, और वो मिस ना होने दें, वो बहुत जरूरी है। अगर ऐसा कुछ है तो अपने शहरों में अपने यूरोलॉजिस्ट से मिलने की जरूरत है, बहुत जरूरी है। अगर ब्लैडर बहुत ओवर एक्टिव हो रही है पुरुषों में, तो या तो ब्लैडर अपने में ओवर एक्टिव है, जो मैंने बताया एज स्टोरेज ऑर्गन, उस ब्लैडर की वेलनेस घट रही है, और दूसरी तरफ या तो रुकावट बहुत हो चुकी है, अब ये ब्लैडर सेकेंडरी ओवर एक्टिव हो रही है, बिकॉज रुकावट इतनी ज्यादा है, ब्लैडर खाली कैसे करे, बार बार नॉक कर रही है।
बहुत जरूरी है। दूसरा, अगर यूरिन में कोई खून आता है तो वो नॉर्मल नहीं है। यूरिन में खून आने के बहुत से कारण हो सकते हैं, जिसमें आप इकोस्प्रिन क्लोपिडोग्रेल खा रहे हैं तो यूरिन में खून आ सकता है। तो घबराई नहीं, इमीडिएटली अपने यूरोलॉजिस्ट को मिले, अपने शहरों में मिले। बहुत 2 टियर सिटीज में यूरोलॉजिस्ट अगर हमें नहीं मिल पाते तो हमारे जनरल सर्जन, हमारे फैमिली डॉक्टर्स, ये सब हमें हेल्प करते हैं। तो सब डॉक्टरों को इसके बारे में बहुत हद तक आइडिया रहता है, और यूरोलॉजिस्ट उस तरह के हैं जो आपको आगे ले जाते हैं और ऊंचे लेवल में आपकी ट्रीटमेंट करने की कोशिश करते हैं। हमारे लिए जरूरी है कि कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ यूरिन को अनदेखा ना करें। ये बहुत जरूरी है कि 50 साल के बाद हेल्थ चेकअप में इन सब चीजों के बारे में जागरूकता होनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, it is important from this platform to talk on prostate health, because on an average that we work here 8 to 12 hours every day and see patients in 40s, 50s, 60s, 70s and 80s जिनकी प्रोस्टेट की चेंजेस हो रही थी, और उन चेंजेस के बारे में बहुत कुछ जानना होता है। संक्षेप में ये बताना चाहूं कि प्रोस्टेट की सर्जरी 2 तरह की होती है। रुकावट जो होती है उसके लिए हम जब ऑपरेट करते हैं तो अंदर से प्रोस्टेट के रास्ते को खोल देते हैं, जो रुकावट हो रही थी, तो पेशाब और भी खुल के आता है, यूरोफ्लोमेट्री में फ्लो दिखती है, आप खुश होते हैं, ब्लैडर को वो चोट नहीं पहुंचा जहां ब्लैडर इनइलास्टिक होती जा रही है। दूसरी तरफ अगर प्रोस्टेट कैंसर की तरफ जा रही है तो हम उस पूरे कैंसर को निकाल देते हैं, बशर्ते हम और आप टाइम पे मिले। देयरफॉर आई रोट, अर्ली मैनेजमेंट इज द इंपॉर्टेंट न्यूज दैट वी नीड टू हैव। इस बीच में कुछ लोग प्रोस्टेट की दवाई खाए जा रहे हैं, और खाते हुए भी यूरिनरी फ्लो अच्छी नहीं है, खुल के नहीं आती है, बार बार जाना पड़ रहा है, रुक रुक के आता है, उनकी यूरोफ्लोमेट्री कभी हुई नहीं है, कोई मेजरमेंट नहीं हुई है, तो अवश्य उनकी यूरोफ्लोमेट्री की जरूरत होती है। हमें पता चलता है कि आपकी सच्चाई क्या है। तो बहुत बार लोग दवाई खाते रहते हैं, पता भी नहीं कि दवाई किस लिए खा रहे हैं, और ये गलत होगा। प्रोस्टेट की दवाई बहुत बार लाइफ लॉन्ग भी चलती है, बहुत बार हम दवाइयों को चेंज भी करते हैं, और हमारी बात मानिए कि बहुत से लोगों को हम दवाइयां बंद भी करते हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो दैट prostate changes will happen to men. Changes can be seen in terms of a size of prostate which is growing in size by the sonologist, which a urologist would try to decrease by giving the right medicines to shrink the prostate gland as an attempt. प्रोस्टेट खुल अगर रास्ता ब्लॉक कर रहा है तो वो दवाइयां हमारे पास आज हैं, जहां कहीं एक दवाई से लेके आज इतनी गवेषणा हो चुकी है, जहां हम सबसे अच्छी दवाई दे सकते हैं कि यूरिन खुल के आए। इस तरफ हम आगे बढ़ते बढ़ते प्रोस्टेट को अनदेखा ना करें, वो आज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो फ्रेंड्स, एज आई कम टू अ क्लोज, आई वाज ट्राइंग टू आंसर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इन टर्म्स ऑफ यूरिनरी हेल्थ को सेफगार्ड करें। 40, 50, 60, 70 साल की उम्र में अगर यूरिन खुल के नहीं आता है, अपने यूरोलॉजिस्ट से मिलने की जरूरत है। कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में, जहां मंडे मॉर्निंग से लेकर के सैटरडे इवनिंग तक हम ओपीडी में, जहां मैं बैठा हूं आज पूरी दिनचर्या होने के बाद, लोगों को जागरूक करते हैं कि आपकी प्रोस्टेट हेल्थ को पोस्टपोन न करें। आप अगर दवाई खा रहे हैं और यूरिनेशन ठीक नहीं हो रहा है, हमें जानने की जरूरत है क्यों नहीं हो रहा है। ये ब्लैडर को ब्लेम करना है, जो ब्लैडर कमजोर होती जा रही है डायबिटीज में, स्पाइनल प्रॉब्लम में, या प्रोस्टेट रास्ते को अंदर से ब्लॉक कर रही है, यूरिन खुल के नहीं आता है। क्या आपकी दवाइयां सही हैं या कोई दवाइयों को चेंज करने की जरूरत है? दवाइयों से कोई काम नहीं हो रहा है, यूरोफ्लोमेट्री अच्छी नहीं हो रही है, तो अगला टेस्ट यूरोडायनेमिक्स करते हैं, जहां जानते हैं कि फॉल्ट ब्लैडर में है कि प्रोस्टेट में है, हमें ऑपरेट करना पड़ेगा या दवाइयां चेंज करनी पड़ेगी। तो बहुत सी जागरूकता की जरूरत है, जिसको हम संक्षेप में याद लाने की कोशिश कर रहे थे। यूरिन में खून जाना, यूरिन में जलन होना, यूरिन खुल के नहीं आना, यूरिन पूरा खाली नहीं होना, एक रात को यूरिन बंद हो जाना, और हमारा दवाई खाते रहना और फिर भी आराम ना मिलना, इन सब चीजों से नहीं चलेगा। तो 2024 इज अबाउट ब्लैडर वेलनेस। 2024 is about positive prostate and urinary health for all men in their 40s to 80s. Friends, from this wonderful platform, which gives us an idea that we can reach each other by the platform from which you can identify, listen to it, and get to know more about what you may not know. Give a proper urine sample whenever your sample is being tested. Otherwise, हम गलती से यूरिन इन्फेक्शन की बात करते रहते हैं, बिकॉज वो सैंपल ही सही नहीं था। औरतों में भी सफाई करके बीच का सैंपल देना होता है, पुरुषों में भी देना होता है। सो मिड स्ट्रीम क्लीन कैट स्पेसिमन, your ultrasound, your PSA, all need not be looked alone. They are looked in unison when your prostate health is looked at by your urologist. So friends, as I come to a close, at the time when you should have your dinner, it is it's a very humbling feeling and a very privileged feeling to be speaking from a wonderful platform at the Kokilaben Dhirubhai Ambani Hospital, which we call as Bladder Wellness, which the IPCA lab supports around. So thank you everybody in the team who are not visible to you, but all of them work very hard to reach this message all the way to you. और ये मैसेज आप तक पहुंचने की जरूरत है। तो आपके घरों में, आपके सोसाइटीज में, आपके नेबरहुड में, या आपके अपने रिलेटिव्स, या फिर आप में से कोई जिनकी यूरिनरी हेल्थ और जिनकी प्रोस्टेट हेल्थ में डाउट है, उसको वहां ना छोड़े, उसको अपने यूरोलॉजिस्ट को अपने शहरों में लेके जाएं। सी आवर कलीग्स, माय फ्रेंड्स इन दिस कंट्री, इन दिस सिटी, इन दिस हॉस्पिटल, एंड प्रॉब्ली गेट सॉर्टेड आउट। एट द बैक ड्रॉप ऑफ दिस इज एन इंपॉर्टेंट मैसेज दैट अवेयरनेस वाज वेरी इंपॉर्टेंट। द बेस्ट टाइम टू हैव एन अवेयरनेस वाज 20 years ago। तो आज 60 साल का जो बंदा है, अगर वो 40 साल का था और उसे पता होता, तो वो 40 से 60 साल तक अपने यूरोलॉजिस्ट को मिल रहा होता है एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, एंड कुड हैव सॉर्टेड इट।
But if we did not know about it 20 years ago, the best time to know it is now. And therefore, this strong and wonderful platform at that point in time where you can spend time in full immersion to identify and understand yourself is what we continue speaking to a lot of patients every day. So friends, take your prostate health to the highest level. Not to worry that if you have a trouble. Trouble is treatable, trouble is curable. As I said, impossible to possible, it's completely treatable and curable. So why should we leave it alone? Dr. Richa, thank you for actually being there. Thank you for standing by, and let's look into what are the aspects we need to treat. Quick questions हैं क्या हमारे लिए? Yes, sir. We do have certain questions from the viewers. If you, with your permission, we could take that up. One of the viewers would like to ask that any dietary changes can prevent prostate cancer, the chances of prostate cancer. Yeah. So Devopriya, the important aspect is prostate cancer is a hormone-related change. Like your black hairs will turn gray and your age will become 40s to 60s. There's no way you can stop it. The entire platform today and all the awareness drives are to pick up things early. There may not be a possibility to stop it. For example, if there was something to quit, then I tell people in this country, and I see all men who come smoking. Smoking brings about multiple cancers like tobacco. It brings about erectile dysfunction. It brings about changes in the semen parameters. It also brings about cancer in our organs, in the kidneys, in the urinary bladder, and also in the prostate. Prostate cancer directly doesn't happen because of smoking, but changes of the bladder cancer and kidney cancers are directly from smoking. That means a smoker may almost for surely get these cancers compared to a non-smoker. ऐसा नहीं कि non-smokers में ये नहीं होता है. So a wake-up call is for people where something can be quit and something good can happen. You quit today, the result of good result will come decades later. खाने में ऐसा कुछ नहीं है जो आप खाएंगे और prostate cancer नहीं होगा. But yes, in today's world that so much of phytopharmaceuticals and organic food is being talked about. Obviously, whatever we take in our mouth goes inside and the body has to metabolize. आप जो भी स्वादिष्ट खाना खाते हैं, उसकी body को changes या भुगतना पड़ता है. So very important not to take poisons inside, ताकि body will go through the suffering. So something which may be very tasty may not be the right food. But yes, all antioxidants. So मैं लोगों को vegetarian बनाना शुरू करता हूँ, साग, सलाद, सब्जी और फल. That means all those things which have got antioxidants. ये अगर आप ज्यादा ले रहे हैं, तो obviously you are on a path where you are keeping your body still. आपने किसी को देखा जिनकी उम्र 105 साल थी, 105 साल तक फिट थे और बोले मेरे को और भी फिट रहना डॉक्टर पांडे, मेरी यूरिन ब्लॉक हो गई, उसका रास्ता खोलिए, उसके अंदर कैंसर नहीं था. तो कहने का मतलब है कि prostate cancer can be prevented. A very difficult question to answer. It may not be possible, but yes, if somebody has a prostate cancer, his first degree male relative goes under the radar. अगर कोई 60-70 साल के हैं और उनमें prostate cancer है, उनके बड़े और छोटे भाई और उनके बेटे, so first degree male relatives are under the radar because we follow them very closely because they could have a genetic linkage and they could get prostate cancer. So that is one thing. Number one, that if you have a first degree relative, your father or your elder brother having a prostate cancer, then we need to examine you and evaluate you more closely. Though we look at everybody 1 year, probably 6 monthly, that we pick up early. So cancer ka pick up early is completely treatable and curable, and that is why we came in here to talk to you. So risk of prostate cancer may change with age. मैंने बताया 80 साल की उम्र में 80% लोग के अंदर prostate cancer बैठा हुआ है. वो लोग आज ये सुन नहीं रहे, उनको यूरिन में कोई ट्रबल नहीं है, तो वो आ भी नहीं रहे, तो काम चला रहे हैं. Obviously, prostate की उम्र के साथ साथ चेंज होती है. So there may be a prostate cancer sitting, but it may not jeopardize your life. It's a different cancer compared to the lung cancer and the kidney cancers and bladder cancer. It does not normally take life. It is more of a indolent kind of a thing, unless it's a very high grade tumor. But we need to be aware of it because there are various changes happening around. And prostate cancer is a big buzz right now. That I treat prostate cancers regularly. It is important for us to look at. We pick up prostate cancer in time. कोई सामने बैठा उसकी prostate cancer पकड़ में आती है, तो robotically हम पूरे prostate cancer को निकाल देते हैं. We remove the entire prostate and we join the bladder to the urethra, ताकि prostate ही नहीं रहेगा तो फिर काम ही नहीं रहेगा. So for those people whom we pick up early, and therefore the entire platform of bladder wellness today from IPCA Labs at the Coquelin Hospital's platform is all about looking at picking up things in time. आपको overactive bladder है तो उसको prevent कैसे करेंगे? शायद bladder overactive हो गया तो आप क्या करेंगे? आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे, वो सही दवाई देंगे इवैल्यूएट करने के बाद और ब्लैडर को शांत कर देंगे. वैसे अगर प्रोस्टेट कैंसर टाइम पे मिली तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट वी कैन पिक अप इन टाइम, वी कैन इरेडिकेट द कैंसर. लेकिन देर से अगर फैला हुआ प्रोस्टेट कैंसर आया, जो बहुत बार मिलता है देखने को, बिकॉज ये बीमारी आवाज करके नहीं आती है. पता चला कि पीएसए हमारा 0 से 4 के अंदर नहीं है, ये 10, 20, 50, 100 है और प्रोस्टेट कैंसर बहुत दूर फैला हुआ है. वी कैन एक्चुअली ब्रिंग अबाउट अ हार्मोन थेरेपी, जहां पूरी हार्मोन थेरेपी से प्रोस्टेट कैंसर को कंट्रोल में लिया जा सकता है. सो फ्रेंड्स, साग, सलाद, सब्जी और फल और डाइट which contains a high amount of antioxidants is believed to be a protective or cancer protective kind of a diet that you can take. At the end of it, whatever you eat,
Your body has to pay a price. Very important aspect, which only when you close your eyes and think about, then you know what does it matter. So eating double breakfast and triple lunch and 4 times a dinner and eating a lot because we are thirsty, hungry, and we find good food is always not required. Therefore, take saag, salad, sabji and phal, take those antioxidants. Perhaps I pray that nobody gets a prostate cancer. But as I said, hormone-related genetic changes do happen. First-degree relatives need to be looked at. And changes, if happen, not to panic. Because there are urologists in this country who are deeply interested in you. They will pick up the prostate cancer early and treat. That's what I continue doing it at the Kokila Hospital. For people who come with an early prostate cancer, we robotically clear it completely. Thank you, Dr. Richa. Thank you. Thank you so much. So one more word added to the old saying, Jaisa an Vaisa man. So Jaisa an Vaisa tan, possibly. So one thing I could definitely say, there was Sanjay in the Mahabharata with the divine drishti, or what we call the Divya Drishti. He was blessed with the Divya Drishti. And here we have Dr. Sanjay, who's blessed with a Dur Drishti, or a foresight. A Dur Drishti, a foresight to spread mass awareness about the prostate health. Thank you so much, sir, for being here with us. बड़ी सरल शब्दों में, बहुत ही सिंपल भाषा में आपने हर पहलू को सिर्फ छुआ ही नहीं, बड़ी सरलता से समझाया है। इस बात को मुझे लगता है हर घर तक पहुंचाया है ब्लैडर वेलनेस के माध्यम से। Thank you so much, sir, for being here with us, and we look forward to more such very insightful sessions with you in the near future. Thank you so much, and thank you to all the viewers for being here with us and for being there actively throughout the session. And you can join us, you can be with us all the time on our Facebook page called The Bladder Wellness. You can also find us on YouTube, Instagram, and Twitter. Thank you so much. Have a happy and healthy life. A good night. Before we come to a close today, it was important for us to reach out to all men. And I salute this platform at the Bladder Wellness from the Kokila Hospital, where we could reach out, obviously elaborate, but फिर भी संक्षेप में ये बताना जरूरी होता है कि ये चेंज तो होता ही है. So if somebody has a cancer prostate, it obviously risks his first degree relative, and therefore an earlier screening is a requirement. If somebody has a cancer prostate, it is spreading, there are medicines to treat it. या prostate की size बढ़ रही है और रास्ते को ब्लॉक कर रही है, तो हम दवाई खाते ना रहें कि एक दिन पेशाब का रास्ता बंद हो जाए. तो बहुत से लोग हैं, डॉक्टर रिचा, जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिलता है, हम दवाई खा रहे हैं, हमारी फ्लो अच्छी नहीं आ रही है, फिर भी हम दवाई खाए जा रहे हैं. तो क्यों दवाई खा जा रहे हैं? ये दवाइयां महंगी हैं पर दवाइयां अच्छी हैं. उन लोगों में काम आती जिनमें काम आने का है. अगर काम नहीं आ रही है तो देयर इज अनदर थेरेपी वेयर वी क्योर यू. तो एक तरफ हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जागरूक करते करते, जो लोग ट्रीट हो सकते हैं उनको ट्रीट करके हम रिवर्स करने की कोशिश करते हैं. पर बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी ट्रीटमेंट से बात नहीं बन पाती, उनको हम क्योर करते हैं. So why wait for your turn to have an emergency in terms of an obstruction, bleeding, retention, or going through a panel of processes around? Therefore, knowing your urologist in your cities, in your hospitals, getting it treated is what our anchor was telling. It's important for safeguarding prostate health and taking it forward to the next level wherever you stay. It's important that in each city, in each location, there are Sanjay Pandays or there are urologists who are keen to look at being Doordarshi. If I see somebody, I look at his younger son who is 40s and 50s, I say, is your urinary health good? He says, my flow is also poor. I want to do a uroflowmetry. So at the end of it, while we come to a close on this wonderful evening today, we look forward to people understanding that their prostate health is a progressive change. It did not happen yesterday night, as the gentleman said. Ye chal raha tha, hame patta nahi chala. Therefore, don't leave it underreported and undertreated and underdiagnosed. Let it be diagnosed in time. Let it be treated in time. And from this wonderful platform where we can treat you medically, we can make you aware on these processes of progression, and we can cure you on aspects where a cure is required to stop this progression, is all that I was trying to tell you. We salute you for being there, and we salute you for listening to it. There weren't much questions required because all the questions were attempted to be answered. It is more of an awareness drive for people to wake up that you can be treated and cured when you see your urologist. He evaluates you through a process and takes you forward and treats you. If you miss out all of them, visit at the Kokila Hospital in Andheri West in Mumbai to help you out, to shatter this myths, take you forward कि छोटा prostate, बड़ा prostate, उम्र, ये सब चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है. आपकी परफॉर्मेंस आपकी वॉशरूम में उतनी अच्छी रहे, इसकी दुआ है, जिसके बारे में हम दूरदर्शी हो रहे थे. So thank you Team IPCA, thank you Bladder Wellness Platform, thank you Dr. Richa for standing by and giving those important insights. We come to a close today evening to meet again on 7th of March to celebrate a World Women's Day by not getting them incontinent. Thank you again. Thank you so much, sir. And with this, we come to an end of this very insightful, very knowledgeable session by Dr. Sanjay Pandey. Thank you so much to all the viewers. Please stay in touch. Thank you.